نماز پڑھنے سے منع ہے, چٹائی تھانے میں جمع کرنے کی بات کی جاتی ہے, وہاں کنسنٹریشن کیمپ پہ وہاں یہ مکار جا کر کے کسی کی گردن نہیں کاٹتے, کیونکہ انہیں بھارت میں اس اسلام کے مادھیم سے ستا پراپتی کرنی ہے, زمین جہاد کرنا ہے, یہاں کو کنورٹ کرنا ہے. ان لوگوں کا علاج آخر میں کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں, ان کا تو علاج وہی ہے جو بھگوت گیتا کا راستہ بھگوان شری کرشن نے دکھایا, جو ہمارے بابا پرشورام نے دکھایا, جو بھگوان رام نے دکھایا. مشرک ہے, کافر کا قتل, مشرک کا قتل اسلام میں سب سے بڑا ثواب ہے. کافر کی سمپتی کو لوٹنا ان کے ہاں سب سے بڑا پنیہ کا کام مانا جاتا ہے. کافر کو سب کچھ برباد کر دینا, اس کی بہن بیٹیوں کو بازاروں میں بیچ دینا, بلاತ್ಕಾರ کرنا, اپنی داسیاں بنانا, یہ ان کے لیے ایک ثواب کا کام ہے, کیونکہ وہ لٹیروں کا گروہ ہے, لٹیروں کی مانسکتا. تو لٹیرے, اچھا پھر لٹیرے کیول دھن کے لٹیرے نہیں ہیں, وہ دوسروں کے کیول مال کے لٹیرے نہیں ہیں, ان کی عزت کے بھی لٹیرے ہیں, ان کی بہن بیٹیوں کے بھی لٹیرے ہیں, ان کے قاتل بھی ہیں. تو قاتلوں کے جو یہ گروہ کی سچائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ قاتلوں کا ایک گروہ تھا, آج پوری دنیا میں پھیل گیا. اسلام کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے محمد نے جو کیا وہ کرنا بہت ضروری ہے. محمد کے کیے ہوئے کاریہ کو ہی سنت مانا جاتا. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ محمد نے جو اپنے جیون میں کیا. اب محمد نے تو اپنے پوروجوں کا مندر توڑا, تو اس کا ارتھ ہے کہ جو بھی مسلمان بنے گا اسے اپنے پوروجوں کے مندروں کو توڑنا ہی پڑے گا. محمد نے اپنے پریوار کے جن لوگوں نے اسلام سویکار نہیں کیا سب کا قتل عام کیا, تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کا قتل عام کر دے. محمد نے جتنی بھی مہیلائیں اسے اچھی لگی ان سب کو اپنے پاس رکھا, اور جو نہیں تھی انہیں بلاತ್ਕਾਰ کے لیے بانٹ دیا. تو یہی مسلمانوں کا کرتویہ ہے, جو محمد نے کیا اسی کو سب مسلمان کرتے ہیں, وہی مسلمانوں کا کرتویہ ہے. یہ ان کی ایک سنت ہے, ان کا فرض ہے, دھارمک کرتویہ, جو ان کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے. یہ سنت کا مطلب ہے ریلیجیس ڈیوٹی آف اے مسلمان, ٹھیک ہے نا, ریلیجیس ڈیوٹی آف اے مومن. تو وہ اپنی ڈیوٹی ہے کہ جو محمد نے کیا وہی انہیں کرنا ہے. کہ یہ چین کے اندر جہاں محمد کا نام رکھنے سے منع ہے, مسجد میں نماز پڑھنے سے منع ہے, چٹائی تھانے میں جمع کرنے کی بات کی جاتی ہے, وہاں کنسنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد, محترم و مکرم قابل احترام عزیز بھائیوں اور میری بہنوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم دوست بھائی اور بہنوں, آج کے اس لائیو سیشن میں یقیناً دل کافی دکھا ہوا ہے, اور بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ قرآن مجید اس دنیا کی سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. اس کا سب سے زیادہ مضبوط اسٹرانگ ریزن اور وجہ دل میں یہی آ رہی ہے کہ اگر یہ کتاب, اگر یہ قرآن مجید, اگر یہ اللہ کا کلام, اگر یہ مسلمانوں کا دستور حیات, اگر یہ ایمان والوں کا قانون زندگی, اگر یہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام, اگر یہ ذرہ برابر بھی غلط ہوتا نعوذ باللہ, اگر اس کتاب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا, تو آج اس طرح یہ جھوٹے مکار اور قوم کو دھوکہ دینے والے دغاباز اس قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات پر انگلیاں نہ اٹھاتے, اور بار بار میرے رب کے اس کلام کو اس طرح چھیڑنے کی کوشش نہ کرتے. یقیناً دل بہت دکھی ہے کہ آج یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ان دو یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, ان دونوں کے دونوں قرآن, اسلام, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں
اور اسلام کے خوبصورت اسٹرکچر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ میں آج کی اس لائیو سیشن میں اپنے بھائیوں اور دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر یہ کب تک چلے گا؟ کب تک اس طریقے کی گھنونی کوششیں کی جاتی رہے گی؟ کب تک ان سازشوں کے انبار لگاتے جائیں گے؟ کب تک اس طرح کا ظلم دنیا میں چلتا رہے گا؟ کب تک مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا رہے گا؟ بار بار مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا، بار بار مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جا رہا، بار بار مسلمانوں کے جن چیزوں سے آستھا جڑی ہے، عقیدت جڑی ہے، ان کو جھوٹی کہا جا رہا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہ جو سوامی نرسنگھ آنند سرسوتی ہے، آج تک آپ نے میرے جتنے لائیو سیشن دیکھے ہیں، اللہ گواہ ہے، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کبھی بھی نہ سوامی نرسنگھ آنند سرسوتی کو، نہ پشپیندر مہاراج کو، نہ کسی غیر مسلم بھائی کو، نہ انہیں میں نے کوئی بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے، نہ میں نے کبھی ان کو برا کہا، نہ میں نے کبھی گالی دی، نہ میں نے کبھی کوئی برے القاب ان کے لیے استعمال کیے۔ مجھے پتا ہے، میں جب سوامی نرسنگھ آنند سرسوتی کو سوامی نرسنگھ آنند سرسوتی جی کہتا ہوں، پشپیندر مہاراج کہتا ہوں، خود میرے کتنے مسلمان بھائی جن کو تکلیف ہو رہی ہے، جب میں ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے یہ دو حضرات کہتا ہوں، تو میرے مسلمان بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ان کو حضرات کیوں کہتے ہیں؟ آپ سوامی نرسنگھ آنند سرسوتی کو سوامی جی کیوں کہتے ہیں؟ آپ پشپیندر کو پشپیندر مہاراج کیوں کہتے ہیں؟ یقیناً میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، میں نہیں کہہ سکتا، میں ان کو جواب دینے کی سچویشن میں خود کو نہیں پاتا کہ میں ان کو زبان کھول کر کس منہ سے کہوں، اور میں کیا کہوں کہ جو لوگ روزانہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور روزانہ قرآن مجید کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور روزانہ اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ اتنی ریسپیکٹ سے کیوں پیش آ رہا ہوں؟ لیکن میں آج اس کے اس لائیو سیشن میں سب سے پہلے تو اس کا وضاحت اور اس کی کلیئرفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آج سوامی اور پشپیندر مہاراج نے جو غلاظتیں ہمارے سامنے اونڈیلی ہے، اس کا آپریشن کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آج سوامی نرسنگھ آنند سرسوتی نے ایک نئے موضوع کو چھیڑا ہے، آپ بھی دعا کریں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر اللہ نے میرا ساتھ دیا، اللہ کی نصرت رہی، اللہ کی مدد رہی، تو میں آج میرے اس پاک کلام کو سامنے رکھ کر بتانے کی کوشش کروں گا کہ سوامی نرسنگھ آنند سرسوتی نے ریلیجیس ڈیوٹی آف اے مسلم کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، اور سنت رسول کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر انہوں نے گھٹیا تبصرہ کیا ہے اور بہت ہی بیڈ کمنٹ کیا ہے۔ لیکن آج کے اس لائیو سیشن میں ہم بتائیں گے سنت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں اس لیے سوامی کو سوامی جی، پشپیندر مہاراج کو پشپیندر مہاراج کہہ رہا ہوں، میں کبھی اس لیے اپنی زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکال رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا ماننا ممکن ہے غلط بھی ہو سکے، آپ میں سے بہت سارے بھائی وہ ہوں جو میری اس اوپینین سے سیٹسفائی نہ ہو، لیکن میرا اپنا یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے یہ شر شاید اسی لیے اٹھایا ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کو شر کے طور پر استعمال کریں، ہماری زبان سے گالیاں نکلیں، ہم برا بھلا کہیں، ہم بدتمیزیاں کریں، ہم ان کے ساتھ ہیٹ اسپیچ کرے، اور پھر یہ ہمارا یہ ریکارڈ بنا کر یہ پیش کر دے حکومت کے سامنے یا دنیا کے سامنے، یا پھر ہم میں سے کوئی مسلمان جذبات سے باہر ہو کر اللہ کے نبی کی عقیدت بے شمار مسلمانوں کے دل میں پیوست ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لکھنے والوں نے لکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین، وہ قومیں جنہیں دنیا پر راج کرنے کا جذبہ ہے، وہ قومیں جنہیں دنیا پر حکومت کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن جس کے سینوں میں ہیں اور اسلام کا جو پرچم لہراتے ہیں، پوری دنیا کے لیے یہی قوم کانٹا بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا ہے اگر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں کو توڑنا ہے، اگر مسلمان قوم کو تکلیف دینا ہے،
अजियत देना है तो बस एक काम करो, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर दो, मुसलमान खुद ब खुद तकलीफ में आ जाएंगे। एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा वजूद है, एक कायनात के ज़र्रे ज़र्रे और ज़र्रे ज़र्रे का एक ऐसा मोहसिन है जो पूरी इंसानियत के लिए जो मुत्तफिक है, पूरे मुसलमान जिसके ऊपर मुत्तफिक है। अगर एक पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की गई, पूरे मुसलमानों के दिल ढल जाएंगे, पूरे मुसलमान कौम का दिल टूट जाएगा। इन्होंने देख लिया दुनिया के करोड़ों अरबों मुसलमानों को हम तकलीफ कैसे पहुंचाएंगे, हम कैसे एक एक मुसलमान को पकड़ कर सताएंगे। इनका दिल अगर तोड़ना है तो इनके नबी की शान में गुस्ताखी कर दो, खुद ब खुद इनका दिल टूट जाएगा, खुद ब खुद ये बेचैन हो जाएंगे, इनके वजूद पे लर्ज़ादारी हो जाएगा। ये दुश्मनों का बतलाया गया मैं रिसर्च आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों का तज्जिया है। उन्होंने एनालाइज करके बताया कि मुसलमान सबसे ज़्यादा अपने हबीब और अपने महबूब नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये दरिंदे इसी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी अक़ीदत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं। इसीलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करता ताकि कल के दिन वो फिर किसी कुरान मजीद के मौजू पर उंगली उठाए, और ना मैं इन दरिंदों की वजह से हमारे किसी भी मुल्क के गैर मुस्लिम भाई को तकलीफ देना चाहता हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई कि दो कौम के ऐसे भेड़िए खड़े हो गए जिन्होंने इस्लाम की, कुरान की, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर दी, और उसके जवाब में अगर हम दुनिया में बसने वाले और हमारे इंडिया में बसने वाले करोड़ों गैर मुस्लिम बिलखुसूस हिंदू भाइयों के दिल तोड़ दे, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई। हमें हमारा मज़हब तो ये नहीं सिखाता, उनका मज़हब भी नहीं सिखाता, लेकिन ये किसी मज़हब को मानने वाले नहीं होते, इसीलिए मैं ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। दूसरी बात, आज की ये जो दो वीडियोस आपने देखी, इसमें पुष्पेंद्र महाराज का कहना है कि ये चाइना के अंदर इस तरह हालात हो गए, फलां मुल्कों में नमाज पर रोक दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, वहाँ पर ये कुछ नहीं करते, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को मारने की धमकियाँ देते हैं। ये मुल्क में क्या करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास आपका जो मज़हब है, मुझे नहीं पता कि आप किसी मज़हब को मानते भी हैं या नहीं मानते, ऐसा तो नहीं लगता कि आप किसी मज़हब को फॉलोवर है, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो हेट स्पीचेस है, आपकी जो आइडियोलॉजी, मैं आपकी आइडियोलॉजी कह रहा हूं, किसी मज़हब की आइडियोलॉजी नहीं। चलिए मैं नाम लेकर कह देता हूं, सनातन धर्म की बात नहीं करता, अपने आप को सनातन धर्म का वासी कहना छोड़ दो। आपका मुझे कोई मज़हब नहीं लगता, क्योंकि आप जिस तरीके से पूरी दुनिया के करोड़ों इंसानों को तकलीफ दे रहे हैं, दुनिया का कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी इंसान को तकलीफ दो, किसी मनुष्य को तकलीफ दो, कोई मज़हब नहीं सिखाता। लेकिन आप जो बार बार कह रहे हैं, अगर आप किसी मज़हब को मानते हैं, हम नहीं मान रहे हैं, फिर भी फर्ज कर लो कि अगर आप या आपके जो सनातन धर्म ही है, अगर इस धर्म के या हिंदू धर्म के या गैर मुस्लिम भाइयों के जो देवी देवता जिनसे उनकी आस्था जुड़ी है, अगर दुनिया का कोई शख्स उनको बुरा भला कह दे तो क्या तकलीफ नहीं होती? क्या उनका दिल नहीं जख्मी होता? और अगर एक बड़ी मेजॉरिटी में एक बड़ी पॉपुलेशन हो, जहां पर मेजर पॉपुलेशन हो, ग्लोबल जिसका कंट्रोल हो, अगर इस तरह कहीं पर हालात आ जाए कि किसी बड़े साधु को, किसी बड़े देवी देवता को या किसी बड़ी बुजुर्ग शख्सियत के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाएं जिससे आपकी कौम को हट हो, जिससे आपकी कौम को तकलीफ हो, तो क्या आपका दिल, आपके जज्बात नहीं उभरते? क्या उनको पकड़कर मारना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें तकलीफ देना चाहिए? हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, हमारा मुतालिबा यही है कि हमें हमारे इस डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेसी मुल्क में हमें इंसाफ चाहिए। हम इस तरीके से रोजाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हम एक मर्तबा बर्दाश्त कर सकते, ना रोजाना बर्दाश्त कर सकते। लेकिन अब तो हद होती जा रही है, रोजाना कोई नया वीडियो स्वामी का अपलोड होता है, रोजाना कोई नई इंटरव्यू अपलोड होती है, और हर इंटरव्यू में वही गिलाजतें बकी जा रही, वही गंदगियां बकी जा रही, वही झूठ कहा जा रहा। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। हम हुकूमत से मुतालिबा करना चाहते हैं, हम अदालत आलिया में अर्जी पेश करना चाहते हैं, हम हुकूमत के, हम इस मुल्क के उन इंसाफ पसंद कौम के बाशऊर और
इंटेलेक्चुअल लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जिनका धर्म इंसाफ है, जिनका धर्म मानवता है, जो धर्म की बुनियाद पर युद्ध के कायल नहीं, जो लड़ाई झगड़े के कायल नहीं, जो मोहब्बत के पीस के कायल है, जिनकी आइडियोलॉजी अमन और शांति है, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप भी आवाज उठाएं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का मसला नहीं, यह इंसानियत में फसाद पैदा करने का मसला है। ये स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती और पुष्पेंद्र महाराज जैसे लोग कौम को उकसा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हुकूमत से हमारे हर इलाके के, हर स्टेट के, हर शहर के मुसलमानों को चाहिए वो पुलिस अफसरान जिनको हम जानते हैं, हमारे इस मुल्क की पुलिस का एक बहुत बड़ा तबका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है जो कौमी बुनियाद पर, जो इंसानी बुनियाद पर पीस कायम रखना चाहता है, देश में शांति रखना चाहता है, देश में अमन रखना चाहता है। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती की इन वीडियोस को पेश करके आप बताइए उनको, पुलिस के महकमे के पास चले जाएं, आप उनके सामने उनका वक्त लें, वक्त लेकर बैठें, पूरे मोहब्बत के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे शांति के साथ उनके सामने क्लियर करे कॉन्सेप्ट को। देखिए ये पैगंबर मोहम्मद की शान है, ये पैगंबर मोहम्मद का मकाम है, ये पैगंबर मोहम्मद का मर्तबा है, ये हमारे प्यारे आका की ज़िंदगी है, ये हमारे नबी का रुतबा है, ये हमारे नबी की हैसियत है। पूरी दुनिया में ये कुरान पढ़ा जाता है, आप कुरान लेकर जाइए। मैं तो कहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरी मुसलमान बहनों से, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, अल्लाह ने अगर आपको मलका दिया है, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है, अल्लाह ने अगर आपके अंदर इतनी पावर दी है कि आप एडवोकेट से कनेक्ट हैं, अगर आप जजेस से कनेक्ट हैं, अगर आप पढ़े लिखे तबके से कनेक्ट हैं, अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है, तो आप इंग्लिश में पिटिशन लिखिए, आप इंग्लिश में एक रिक्वेस्ट लिखिए, ये कुरान मजीद लेकर जाएं और इंग्लिश में कुरान मजीद ले जाकर आप पेश करें पुलिस स्टेशनों में। आप उनको देखें, बताएं कि देखिए सर ये हमारी कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रहनुमाई करने का सामान है। ये सिर्फ इंडियन कुरान नहीं, ये पूरी दुनिया में पढ़े जाने वाला कुरान है। देखिए सर इस कुरान को आप पढ़िए, आप इस कुरान को तर्जमे से पढ़िए। अगर कोई ऐसा इलाका हो जहां तेलुगु बोली जाती हो, तेलुगु स्पीकिंग लोग हो, तो वहां पर तेलुगु स्पीकिंग पुलिस स्टेशन और थानों में जाकर आप तेलुगु में मैटर टाइप करके, तेलुगु में रिक्वेस्ट लिखकर, तेलुगु में अर्जी दाखिल कीजिए और तेलुगु का कुरान ले जाकर दीजिए और अपने कांस्टेबल को और वहां के जिम्मेदारों को और वहां के डीआईजी को और वहां के एसआई को, जो जिम्मेदार है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, हर स्टेट के आप उनकी खिदमत में पहुंचकर कुरान पेश करिए। तेलुगु की ज़बान जानते हैं, तेलुगु का कुरान पेश कीजिए। हिंदी की ज़बान जानते हैं, हिंदी कुरान पेश कीजिए। इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश पेश कीजिए। आप अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा पुलिस का जिम्मेदार है जो हिंदी जानता है तो उनको हिंदी दीजिए। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप भी जो अमन चाहते हैं वो इस तरीके की रिपोर्टें पुलिस स्टेशनों में जाकर लिखवाएं और कहें कि देखिए साहब ये जो कहा जा रहा है ये झूठ है, ये बोला जा रहा है झूठ है, ये मुसलमानों को तकलीफ देने की एक कोशिश है, बहुत हो गया, अब हम हर दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं, रोजाना का तमाशा बनाकर रख लिया है। अब हमें भी बर्दाश्त नहीं होता, हमारा भी दिल दुख रहा है, हमारे भी आंसू निकल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, खुद स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती और मेरे कई गैर मुस्लिम भाई, जिन भाइयों से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, जिनका मुझसे दिली रिश्ता है, मैं उनसे बेपनाह प्यार करता हूं, मैं उन्हें अपना भाई समझता हूं, मैं उन्हें अपनी बहन समझता हूं। मेरे कमेंट्स पर, मेरे वीडियोस पर कमेंट करके बताते हैं कि मुसलमानों ने इस वक्त ये जुल्म किया, इस वक्त ये जुल्म किया, फला मौके पर ये जुल्म किया। मुसलमानों की बोलने की जबान तो मीठी है लेकिन किरदार उनका मीठा नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आज की बात कर रहा हूं, आप भी आज की बात कीजिएगा। पिछली जो बातें हैं उन बातों को आप कोई एक बात पकड़ लीजिए, हम एक बात बताते हैं, आप दूसरी बात का जवाब पूछ लेते हैं, एक बात का जवाब होता है, दूसरी बात पर आ जाते हैं। पहले वो बात जो हमने आपको समझाई है आप ये तो कह दीजिए हाँ आप जो बात बता रहे हैं मुझे वो समझ में आ रही है। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती की वीडियो में आपने देखा होगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि काफिर मुशरिक का कत्ल करना मुसलमानों के नजदीक
इस्लाम में सवाब का काम है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे गैर मुस्लिम साथियों, आपने कहाँ पढ़ा कि कुरान मजीद में कहीं लिखा हो कि मुसलमान अगर किसी काफिर को कत्ल कर देगा उसको सवाब मिलेगा? अरे कहाँ लिखा है ये कहीं लिखा नहीं है। वो बार बार गैर मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों के नाम से डर बिठा रहे हैं, मुसलमानों के नाम की दहशत बिठा रहे हैं। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती का बार बार ये कहना है कि मेरे कुछ गैर मुस्लिम हिंदू दो लोग मुसलमानों से दोस्ती करते हैं। अरे किस चीज की दोस्ती कर रहे हो? वो तो तुम्हें मारने का मौका देखते हैं मेरे भाई, फिर झूठ कहते हैं आप। कुरान में कहीं लिखा नहीं है। आज मैं कुरान लेकर बैठा हुआ हूं, मेरे रब का कलाम, पूरी इंसानियत की रहबरी इस कुरान में है। आप किसी भी मजहब को बिलीव करते हो, आपके लिए हिदायत की रोशनी अगर कहीं है तो कुरान मजीद में है। आ जाओ इस कुरान की तरफ। मैं दावत देता हूं आपको, मैं इनवाइट करता हूं आपको। मैं मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, आप पहले कुरान पढ़िए। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद में आप उसके बाद फैसला कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं कहना चाहता हूं ये कहीं लिखा नहीं है, ना कुरान में है। मेरे सामने यहाँ हदीस की किताबें रखी हुई है। इन हदीस की किताबों में भी कहीं ये बात नहीं है कि किसी काफिर को मारना, किसी गैर मुस्लिम को मारना, किसी मुशरिक को मारना सवाब का काम है। ये कहीं लिखा नहीं है। बस पुरानी बातों को उठाकर उसको गलत सलत मिर्ची मसाला लगाकर गुमराह करते हैं आप। वो हालात जो जंग के हालात हुए हैं, जो ग़ज़वा बदर हुई है, जो इस्लाम की पहली जंग है, द बैटल ऑफ बद्र है, इस्लाम का पहला मारिका है। उस पहले मारिके को बुनियाद बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमानों ने लड़ाई की थी, मुसलमानों ने जंग की थी। इंशाअल्लाह बहुत करीब 17 रमज़ान आने वाला है। 17 रमज़ान को मैं पूरी एक लंबी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करूंगा और मैं लाइव सेशन उस दिन बड़ा हम करेंगे और उसको अनाउंस भी करेंगे। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो गैर मुस्लिम भाई जिस भाई को जो एतराज है वो एतराज लेकर हाजिर हो जाए, वो एतराज लेकर कमेंट बॉक्स में आ जाए। वो एतराज या तो एक दिन पहले दे दे या उस दिन लाइव सेशन में दे दे। इंशाल्लाह वक्त रहेगा तो जब ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। वो तमाम बातें क्लियर की जाएगी जिन बातों पर एतराज किया जा रहा है। मुसलमानों ने अगर बदर में लड़ाई लड़ी है, अगर बदर में जंग की है, अगर बदर में मुसलमान और काफिर आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो मालूम कर लो पहले क्या हालात थे। 313 मुसलमान थे, 1000 काफिरों का लश्कर था, 1000 कुफ्फार मक्का का लश्कर था। मुसलमानों के हाथ हथियार से खाली थे, काफिरों के हाथ हथियार से लेस थे। मुसलमान जिस जमीन पर खड़े थे वो जमीन भी जंगी मैदान के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जहां गैर मुस्लिम खड़े थे वो बिल्कुल परफेक्ट थी। पूरा जबरदस्त मुकाबला था काफिर और कुफ्र और इस्लाम का। लेकिन वो जंग कैसे जीती गई वो आप नहीं जानते, उसकी आपको परवाह नहीं है। बस आप कहते हैं कि मुसलमानों का धर्म है, लड़ाई करो, कत्ल करो, मारपीट करो। ये गलत इल्जाम लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सवाब का काम कहीं नहीं बताया गया, कहीं पर यह काम नहीं बताया गया। हाँ, यह बात जरूर बताई गई है, अगर कोई काफिर तुम्हारे मजहब पर तुम्हें चलने से रोके, अगर कोई गैर मुस्लिम तुमको सताए, तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए, तुम्हारे बीवी और बच्चों की जान का दुश्मन बन जाए, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे, तुम्हारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल बना डाले, तो फिर तो दुनिया का हर समाज डिफेंस का ऑर्डर देता है। क्या हमारा मुल्क इस बात का ऑर्डर नहीं देता कि अगर कोई हमारे मुल्क पर हमला कर रहा हो, अगर कोई हमारे मुल्क के फौजियों पर हमला कर रहा हो, तो क्या हमारा मुल्क ये नहीं कहता, हमारी हुकूमत ये नहीं कहती, अदालत अदलिया ये ऑर्डर पास नहीं करती कि डिफेंस में उनसे लड़ो और अपना बचाव करो? अपने बचाव के लिए लड़ना ये कोई क्राइम नहीं होता। मुसलमानों ने भी अपने बचाव के लिए हथियार उठाए थे। और कैसे उठाए थे? मुसलमान कैसी कौम थी? क्या वो लड़ना चाहते थे? क्या उन्हें लड़ना आता था? ये तफसीलात इंशाअल्लाह मैं 17 रमजान को बताऊंगा। लेकिन स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने आज जो एक झूठ कहा है, उस झूठ का ऑपरेशन मुझे करना है। मैं आपके साथ की वजह से उस झूठ का ऑपरेशन करने के लिए बैठा हुआ हूं कि आप इस आवाज को मेरे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाएंगे। और अगर स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती तक पहुंचा दे तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती का ये कहना है कि जो मोहम्मद पैगंबर ने किया है वो मुसलमानों के लिए सुन्नत है, यानी रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम। ये एक नया मौजू, एक नया टॉपिक स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने दिया है। इससे पहले भी एक नया टॉपिक स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने दिया था, रियलिटी ऑफ पैगंबर मोहम्मद, कि मैं दुनिया को पैगंबर मोहम्मद का सच बताने वाला हूं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी उन्वान पर रियलिटी ऑफ पैगंबर मोहम्मद 2 सेशन चलाए थे और हमने बताया था पैगंबर मोहम्मद की सच्चाई क्या है, तुम क्या बताओगे, हम बताएंगे। आज एक और मौजू स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने दिया है, रिलीजन ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम, यानी वो कहते हैं धार्मिक कर्तव्य मुसलमानों का, यानी मजहबी जिम्मेदारी मुसलमानों की क्या है। वो कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने नऊज़ुबिल्लाह लाख मरतबा, हम लाख मरतबा नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं, अपनी जबान से बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। ये अल्फाज हमारी जबान निकालने को तैयार कभी नहीं हो सकती, लेकिन इन बदबख्तों की बदबख्ती को समझाने के लिए, इन मर्दूदों की मर्दूदी को बताने के लिए, इन जालिमों की ये गंदी जबान बंद करने के लिए हमें सुनाना पड़ रहा है, वरना हम नहीं सुनाते थे, इसीलिए सुना रहे हैं। वो बदबख्त कह रहा है कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने पूर्वजों की मंदिर तोड़ी है। अरे ऐसी अहमकाना बातें पुष्पेंद्र महाराज और स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती की जबान से निकलती है। मुझे तो ये लगी नहीं रहा है कि ये लोग नॉर्मल है, मुझे लग रहा है कि ये अब नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोग ऐसी बातें नहीं करते, बहकी बातें की जा रही है। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने दादा का मंदिर तोड़ दिया था। अरे अल्लाह हिफाजत फरमाए, मोहम्मद पैगंबर के दादा कौन हैं? वो अब्दुल मुत्तलिब है। वो कौन अब्दुल मुत्तलिब है? वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा, ये पूरी चैन है मोहम्मद पैगंबर की। ये अब्दुल मुत्तलिब ये मिल्लत इब्राहिम पर थे, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने वाले थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे। वो उनका मंदिर कहाँ था? बेवकूफ जाहिल गवार वो काबतुल्लाह को, अल्लाह के घर को वो मंदिर समझ रहा है। वो मंदिर कहाँ था? वो तो अल्लाह का घर था, वो काबतुल्लाह था, वो मुकद्दस जगह थी। यकीनन मंदिर भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नज़दीक एक पवित्र स्थान है। हम भी उन भाइयों का एहतराम करते हैं। हम इस तरीके के घटिया बातें नहीं करते। हमको ये नहीं सिखाया गया कि हम किसी की इबादतगाह का मजाक उड़ा दे, लेकिन ये बेवकूफ कह रहा है कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने दादा का मंदिर तोड़ा। अरे भाई वहां था ही नहीं, बल्कि वहां तो काबतुल्लाह था, और उसके काबतुल्लाह के होने पर मेरे पास दलील मौजूद है। मैं आपको कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाऊंगा, इसलिए कि हम दलील से बात करेंगे, हम उनकी तरह फेंकेंगे नहीं। हमको फेंकना नहीं आता, हमको छोड़ना नहीं आता, हम दलील से बात करते हैं। देखिए ये कुरान मजीद मैंने खोला है, कुरान मजीद की ये सूरत नंबर 105 है। ये कुरान मजीद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सूरा नंबर 105 है कुरान मजीद की सूरा नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। ये कुरान मजीद की सूरा नंबर 105 है और इस सूरत में 5 आयतें हैं। इन आयतों में अल्लाह फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ अल्लाह तुम्हारे रब ने क्या किया? ये हाथी वाले कौन हैं? ये एलिफेंट, हाथी का मतलब एलिफेंट है, हाथी का किस्से की तरफ अल्लाह इशारा कर रहे हैं। ये कौन है हाथी? उस जमाने में काबतुल्लाह को, अल्लाह के घर को गिराने के लिए हाथी को लेकर एक दुश्मन आया था और उस दुश्मनों ने अल्लाह के घर को गिराने की कोशिश की थी। कहां से कहां मिक्सअप किया जाता है। ये घर को गिराने की कोशिश दुश्मन ने की थी, अल्लाह के नबी ने नहीं की थी। लेकिन पुष्पेंद्र महाराज और स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती को कुछ मालूम ही नहीं है, उन्होंने कभी कुरान खोल के नहीं पढ़ा।
मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो कभी किताब नहीं पढ़े। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं कि मैं कुरान को कई मर्तबा पढ़ चुका हूं। अरे एक मर्तबा आ जाओ ना, वीडियो में आकर कुरान पढ़कर दिखा दो, हम भी तो सुनेंगे कि आप कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं, आपके पास कुरान है भी या नहीं है, अगर है तो कौन सा कुरान है, वही कुरान है जो मुसलमानों के पास कुरान है, या आप किसी और किताब को कुरान समझ रहे हैं। आपको मालूम कुरान किसे कहते हैं? आपने कभी देखा कुरान क्या है? आपको पता है कुरान कैसे लिखी हुई है? आपको अरबी पढ़ने आती है? अगर आती है तो आपने अरबी में पढ़ा या आप हिंदी में तेलुगु में पढ़े हैं? किस जुबान में पढ़े हैं? आपको तो इंग्लिश भी अच्छी आती है, आपने कुरान किस जबान में पढ़ा? आपको कुछ नहीं मालूम है, आप इधर का उधर मिला देते हैं। आपको तो बस मिक्सचर बनाना बड़ा अच्छा आता है, यहाँ की बात को वहां मिला दिया, वहां की बात को यहाँ मिला दिया, पूरा खिचड़ी खट्टा बनाकर अजीब व गरीब एक कॉकटेल बनाकर पेश कर देते हैं। ये देखो, ये इस्लाम दुश्मन ने अल्लाह के घर को गिराने की कोशिश की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या तुमने हाथी वालों का किस्सा देखा? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कैसे, क्या हमने उनके मकर को, यानी उनकी जो चाल थी, उस चाल के साथ में क्या मामला किया गया? मैं खुलासा पेश कर देता हूँ। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उनके ऊपर अल्लाह ने अबाबिल परिंदों को भेजा, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और वो पत्थर के टुकड़े उनके ऊपर मारे गए, कंकर से उनको मारा गया। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, फिर वो मार खा के भूसे की तरह बन गए। ये वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है, और इस वाक़ये की तशरीह में, इस वाक़ये की तफसील में, इस वाक़ये की डिटेल में, इस वाक़ये को लिखने वाले मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा से जो शान नुज़ूल जुड़ा हुआ है, जो कुरान मजीद का इस आयत करीमा का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे, उस दादा जान के दौर का ये वाक़या है। लोग आए थे अल्लाह के घर को गिराने के लिए, और उन्होंने 100 ऊंट थे अब्दुल मुत्तलिब के, और उन ऊंटों को अब्दुल मुत्तलिब के उस जालिम ने रोक लिया था। वो जो हाथी लेकर आया था, जो हाथी लेकर अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था, तो उसने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को भी रोक लिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान उसके पास गए। जैसे ही ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने पहुंचे, उसने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही वो डर गया। उसके ऊपर एक रौब पड़ा, एक हैबत पड़ी, एक दबदबा पड़ा। कौन है ये ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। आपका एक रौब था, आपका एक दबदबा था, आप मक्के के बड़े थे, वहां के आप सरदार समझे जाते थे, ऐसी जबरदस्त वह शख्सियत थी। उसने कहा, आप क्यों आए हो? ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दिए जाए। तो उस अब्रहा नामी जो दुश्मन था, उस अब्रहा ने कहा था कि क्या तुम 100 ऊंट मांगने के लिए आए हो? मुझे लगा था कि तुम काबतुल्लाह को बचाने के लिए आए हो, तुम तो ऊंट का सवाल कर रहे हो। तो उस वक्त में अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया था, ये इन ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए मैं इन ऊंटों को लेने के लिए आया हूं। ये जो घर है काबतुल्लाह, इसके मालिक तो अल्लाह ताला हैं, वो अपने घर को बचाना जानते हैं। ये ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज किसके हो सकते हैं? जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, जो अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन रखने वाले हैं। और ये स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने दादा का मंदिर तोड़ा। मेरे भाई, कितना झूठ बोलोगे? तारीख को तुम पूरी कंडम कर रहे हो, तारीख को पूरी गलत सलत बना रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने जब ये कहा, फिर वो जो हाथियों को लेकर आया था, वो जो बड़ा हाथी था, जो अहम हाथी था, जो मेन हाथी था, वो हाथी आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होता। कितना उसको आगे बढ़ाया गया, कितना उसको मारा गया, आगे बढ़ाने की तमाम कोशिशें कर दी गई। वो हर सिमत जाता, लेकिन जिस तरफ खाने काबा है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह था, वहां वो चलता ही नहीं था। आखिरकार उन्हें रुसवा होकर वापस जाना पड़ा, और फिर आसमान से अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया था। ये है वो पस मंजर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये स्वामी कहते हैं कि देखो, पैगंबर मोहम्मद ने अपने पूर्वजों की मंदिर तोड़ी थी, तो अब मुसलमानों की रिलीजियस ड्यूटी है कि वो मजहब कबूल करने के बाद में हिंदुओं की मंदिरें तोड़े। नौज़ुबिल्लाह, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम ये है ही नहीं। फिर एक और बात कही, ये भी बहुत ज्यादा गलत बात, झूठी बात, मनगढ़ंत बात, इसका सच्चाई से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद अपने
परिवार के लोगों को जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था उनका कत्लेआम कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह। अब आप देखें कितना बड़ा झूठ है। वो पैगंबर मोहम्मद जो उम्मत के लिए रोने वाले थे, तड़पने वाले थे, मचलने वाले थे, आंसू बहाने वाले थे, दुआएं करने वाले थे, समझाने वाले थे, दावत करके रिश्तेदारों को समझाया, प्यार से समझाया, मोहब्बत से समझाया, उनको खाना खिलाया, उनका ख्याल किया। आपके चचा अबू लहब अल्लाह के रसूल के सगे चचा थे, लेकिन वो बदबख्त बन गए। उन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां कर दी, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर भी तारीख उठाकर देखो, ऐ मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, ये स्वामी की बातों में मत आओ। ये तो टोपी पहना रहे हैं, ये तो फिरकी ले रहे हैं, ये रॉन्ग नंबर है। हकीकत क्या है? अल्लाह के रसूल ने अबू लहब को फिर भी नहीं मारा, वो तो बदबख्त था, उस पर तो कुरान मजीद के मुताबिक अजाब नाजिल हो चुका था। चलिए मैं आपको कुरान मजीद से सुना देता हूं ताकि मेरे भाइयों को पता चले कि कुरान मजीद किस चीज का दर्स देता है। मैं आपको बताता हूं, ये पारे 30 है, 30वें पारे के कुरान मजीद का आखिरी पारा है, कुरान मजीद का लास्ट पारा है। इस पारे में ये जो सूरत नंबर दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको भी पता चले कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, किस सूरत में लिखी हुई है। बहुत सारे हमारे भाई देखिए ये कहते हैं कि भाई ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, ये तो है ही नहीं। सूरा नंबर 111 111 सूरा नंबर 111। इस सूरत में 5 आयतें हैं। अल्लाह फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तर्जुमा सुन ले। अल्लाह ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हाथ अबू लहब के बर्बाद हों और वो खुद बर्बाद हो चुका है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसकी दौलत और उसने जो कमाई की थी वो उसके कुछ काम नहीं आई। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, वो भड़कते शोलों वाली आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी लकड़ियां ढोती हुई अपनी गर्दन में मूंछ की रस्सी लिए हुए। ये कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद में जो एक आदमी का, एक औरत का जिक्र किया गया, एक अबू लहब का जिक्र किया गया, एक उसकी बीवी का जिक्र किया गया। ये अबू लहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा है और ये अबू लहब की बीवी अल्लाह के रसूल की चाची है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों से जो इस वक्त लाइव सेशन देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल के बारे में एक घटिया इल्ज़ाम ये बदबख्त लगा रहा है और ये कहता है कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया था इस्लाम नहीं कबूल करने की वजह से। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो अबू लहब अल्लाह के रसूल का सगा चचा है, सगे चचे का मतलब समझते हैं ना, अब्बा का भाई। अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का भाई अबू लहब, अल्लाह के रसूल के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। तो अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, उन 10 बेटों में एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान है, और एक बेटे का नाम अबू लहब है जो अल्लाह के रसूल का चचा है। ये चचा, ऐसा बदबख्त चचा जो अल्लाह के नबी के ऊपर इस्लाम क्या कबूल करता, इस्लाम क्या लाता, उसने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई। जिस वक्त अल्लाह के रसूल पहली मर्तबा इस्लाम की दावत देने के लिए खानदान के लोगों को पहाड़ी सफ़ा के ऊपर जमा किए, मक्के के लोगों को जमा कर लिए, तब उन्होंने अल्लाह के नबी ने बुलाया था तो अबू लहब ने यह जुमला कहा था, तब्बल्लक अलिहादा जमातना, यानी बर्बादी हो तुम्हारी, क्या इस काम के लिए तुमने हमने जमा किया था। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह की बदतमीजी की थी, बेअदबी की थी, बुरे बोल कहे थे। यहां से मैं रुककर ये कहना चाहता हूं, ऐ स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, अगर आज की तारीख में तुमने अपने आप को अल्लाह के नबी की गुस्ताखी से नहीं रोक लिया तो कोई वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। ये इस मुल्क में जो होना है हो। तुम कह रहे हो कि मुसलमानों ने गुस्ताखे रसूल की सज़ा को ये कहाँ से बना लिया। पुष्पेंद्र महाराज कहते हैं कि इतना ज़्यादा पावर इनको कहाँ से मिल गया। कहते हैं कि मक्के में जो मोहम्मद का स्ट्रक्चर था, जो उनका एम्पायर था, उससे ज़्यादा मजबूत एम्पायर तो मुसलमान अपना समझ रहे हैं। ऐसी ऐसी बकवासात कर रहे हैं। अरे सुन लो, हम मोहम्मद पैगंबर के गुलाम हैं। पूरी तारीख गवाह है, 1400 साल की तारीख गवाह है। एक नहीं, दो नहीं,
3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों लाखों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इन 1400 साल में अपने नबी की नामूस की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे दी है। अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा अपनी जान पर खेल लेते थे। चलिए मैं आपको थोड़ी सी झलकी दिखा देता हूं कैसे पैगंबर इस्लाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को सहाबा तैयार होते थे। ग़ज़वा उहद का मारिका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की दूसरी जंग है, जिसे इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी जंग कही जाती है। तुम तो ये समझते हो, बल्कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम झूठ फैलाते हो कि मुसलमान तो बस लड़ते थे। सुनो उस जंग में क्या हुआ था। मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों ने हल्ला बोल दिया और मुसलमान जीतने लग गए थे। जब दुश्मन और मुसलमान लड़ाई करने लगे और लड़ाई के दरमियान एक हालत ऐसी आई कि दुश्मनों का पल्ला नीचे होने लगा, मुसलमानों का पल्ला ऊंचा होने लगा। ऐसे मौके पर दुश्मन भागने के लिए निकल गया था वहां से, मैदान से, और आगे जा रहा था। मुसलमानों ने यह सोचा क्योंकि अब ये जंग हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा की टीम को, 50 सहाबा के ग्रुप को एक टीले पर, एक चट्टान पर, यूं समझ लीजिए कि वो मैदान का इंटरेस्ट था, ऐसी जगह थी जहां से एक रास्ता था, वो भी वहां अल्लाह के रसूल ने खड़ा कर दिया था। लेकिन जब मुसलमान देख रहे थे कि काफिर मर चुके हैं और भाग चुके हैं, तो मुसलमान वहां से हटने लगे। सहाबा कराम ने कहा कि मत हटो। कुछ सहाबा ने कहा, नबी ने फरमाया था जब तक लड़ाई चले ठहरे रहो, लड़ाई अब खत्म हो गई, अब हम हट जाते हैं। सहाबा हट गए, कुछ सहाबा हटे। वो जो काफिरों की जमात चली गई थी, वो वापस पलटकर उस रास्ते से जहां मेरे नबी ने, आज के बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने, अभी माजी करीब के बड़े बड़े जमीन की जो सतह है और जो नक्शे हैं, जो जमीन के नक्शों को नापने वाले लोग हैं, जो माहिरीन हैं रास्तों को नापने के, और जो बड़े बड़े जंगजू लोग कहे जाते हैं, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद ने उहद के मैदान में जो नक्शा बनाया था वो एक बेहतरीन जर्नल की अलामत थी। वहां से वो काफिरों की जमात फिर से रिटर्न आने लगी, वापस आने लगी। वो जब वो वापस आ रही थी, खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने लेकर आया। वहां 10-12 सहाबा खड़े थे, वो कम थे, आने वाले ज्यादा थे। हमला हुआ, सहाबा को उन्होंने मारा, सहाबा कराम शहीद हो गए, और इतना मारा मुसलमानों के अंदर भगदड़ मच गई, यानी एकदम जैसे डिस्टर्बेंस हो जाता है। लोग काफिर तलवार लेकर फिर मारने लग गए, मुसलमान परेशान हो गए, कदम उखड़ने लग गए। तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। सुनो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती और पुष्पेंद्र महाराज और ऐ गैर मुस्लिम भाइयों, आपको जो गुमराह किया जाता है, मुसलमानों ने मारकर इस्लाम कबूल करवाया, नहीं नहीं नहीं, 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। और उन 70 सहाबा में हाफिज कुरान भी थे, बड़े बड़े सहाबा थे। अल्लाह के रसूल के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। खैर, ये जिस जंग में जब सहाबा कराम पर हमला हुआ, सहाबा कराम बिखर गए और लोग मारा जाने लगा। सब सहाबा कराम बिखरे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा नहीं रह गए थे, लोग परेशान हो गए थे अचानक हमले की वजह से। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थे, चेहरे में देखने में मिलते जुलते लगते थे। बस सहाबा को अल्लाह ने ये कमाल दिया था। वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में झंडा था उस जंग का, और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो किसी सहाबी की उनके ऊपर नजर पड़ी, तो वो जो गड़बड़ थी, उस गड़बड़ में उनको ऐसा लगा कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, यानी आपको इस दुनिया से आप गुजर चुके हैं। जैसे ही सहाबा ने ये सुना, उनके वजूद पे सख्ता तारी हो गया कि हाय हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, वो ज़ात अक़दस, वो वजूद मबरूक और वो वजूद मसऊद जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हमारी आंखें जिनको देखकर ठंडी होती है, वो इस दुनिया से चले गए, हम रहकर क्या करेंगे। सहाबा बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ सहाबा कराम ने फिर देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मन हमला कर रहा है। अल्लाह के नबी के उस सहाबा को देखते ही सहाबी ने नबी को देखा, आवाज लगाई जोर से, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, पैगंबर मोहम्मद तो यहाँ बाहयात है। जैसे ही सुना, दौड़कर सहाबा कराम आने लगे। मैं ये सुनाना चाह रहा था, इसके लिए ये तफसीली वाकया सुनाया हूं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए तो एक सहाबी हजरत
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں آتے, کبھی بائیں آتے, کبھی آگے آتے, کبھی پیچھے آتے, دائیں کھڑے ہیں. کہ صحابی کہتے ہیں ارے دائیں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے اگر دائیں جانب سے کوئی میرے نبی پر وار ہوگا میں اپنی جان پر کھیل کر بچاؤں گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بائیں آ جاتے ہیں, پھر پوچھتا بائیں کیوں آ گئے؟ کہنے لگے یہاں سے کوئی وار ہوگا تو میں اپنے نبی کو بچاؤں گا. سامنے آ گئے, پوچھا یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگے سامنے سے کوئی وار ہوگا تو میں اپنے نبی کو بچاؤں گا. کبھی دائیں, کبھی بائیں, کبھی آگے, کبھی پیچھے, اس طرح حرکت حالت بدلتے رہتے ہیں. جس وقت میں جنگ ختم ہوئی تو شہید ہو چکے تھے. 70 زخم آپ کے جسم پر دیکھے گئے, 70 زخموں سے چور تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دشمن نے خوت کی کڑیاں یہاں پیشانی میں مار دی تھی. لوہے کی کڑیاں تھی جو پیشانی میں یہاں دھس چکی تھی. جیسے ہی وہ گھسی ہوئی دیکھا, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے, حضرت فاطمہ دوڑ کر آئی. آ کر ابو عبیدہ نے کہا اے ابو بکر مجھے موقع دو. ابو بکر نے کہا کہ نہیں نہیں, میں اپنے حبیب کے پیشانی سے خوت کی کڑیاں نکالوں گا. لیکن ابو عبیدہ نے گزارش کی مجھے موقع دے دو. اپنے دانت سے پیشانی کی خوت کی کڑیاں نکالی, ان کے دانت ٹوٹ گئے, لیکن اپنے نبی کی تکلیف سے نبی کو بچانا پسند کیا, اپنے دانتوں کی قربانی دے دی. پھر نکالنا تھا, پھر نکالا, دانت توڑ لیے, لیکن نبی کی تکلیف دور کرنا انہوں نے پسند کر دیا. پھر جب پیشانی سے خوت کی کڑی نکلی, خون بہنے لگا, خون گرنے لگا, خون نکلنے لگا. حضرت فاطمہ آ گئی, حضرت علی آ گئے. کیسے اس کو خون کو روکیں گے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک ٹاٹ کا تھیلا حضرت فاطمہ نے لایا, اس تھیلے کو جلایا گیا. جب اس کی راکھ نکلی وہ پیشانی پر لگائی گئی اور تھیلے کو جلا کر لگایا گیا. اس کے بعد میں یہ خون رکا ہے. اے میرے بھائیوں, اے میری بہنوں, میں مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, غیر مسلموں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کی شان میں مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہے. یہ محمد پیغمبر ہے. چلیے میں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے محمد پیغمبر کے اوپر مسلمان اتنے سینسیٹیو کیوں ہیں. کوئی عام بات نہیں ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع رہے گا تو ہم غزوات کے ضمن میں وہ بات بتائیں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مکے سے غیر مسلم شخص کو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر مسلمانوں کے جو پیغمبر ہے ان سے ملاقات کر کے آؤ. اب وہ آئے, انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے گفتگو کی, پھر وہ مکے کو واپس گئے. اس کے بعد اے میرے غیر مسلم بھائیوں, میں خاص طور پر یہ بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, یہ جو واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اور میرے وہ بھائی جو کمنٹ کرتے رہتے ہیں, میرے غیر مسلم دوست کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور مجھ سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو سزا ہے گستاخ رسول کی سزا, یہ پشپندر مہاراج بھی گلہ پھاڑ پھاڑ کے چیختے رہتے ہیں. سب کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں, سنیے یہ کیوں ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے, دنیا میں ایسی شخصیت آج تک نہیں بنی. آپ پیغمبر محمد کو کے ساتھ کسی اور کو کمپیئر نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسا کوئی بنا ہی نہیں. اللہ کے رسول بس اکیلے ایسے بنے تھے. وہ جو غیر مسلم آئے تھے مکے سے, مکے والوں کی طرف سے نمائندے بن کے آئے تھے, وہ واپس جا کر مکے میں کہتے ہیں میں نے پیغمبر محمد کو, یعنی محمد پیغمبر کو میں نے دیکھا, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, میں نے بڑے بڑے شاہوں کو دیکھا, میں نے بڑے بڑے راجاؤں کو دیکھا. وہ اپنے الفاظ کہہ رہے ہیں, میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا کسی کو نہیں دیکھا جیسے پیغمبر محمد کے دیوانے ہیں, میں نے ویسے کسی کو نہیں دیکھا. وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کے پانی کی کونی کے پاس ان کے شاگرد, ان کے صحابہ ان کے ہاتھ کے پانی کو لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ ہاتھ کا پانی گر جاتا ہے تو اس پانی کو اپنے جسم چہرے پہ مل لیتے, جسم پر مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی صحابی کو پانی نہیں ملتا تو جس صحابی کو پانی ملا تھا اس صحابی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ لگا لیتا ہے. اتنی عزت, اتنا احترام میں نے نہیں دیکھا. وہ ناک صاف کرتے ہیں, وہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. ان کے پسینے کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھ لیتے ہیں. میں نے ایسا شخص دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے, میں نے بڑے بڑے رؤسا دیکھے, میں نے بڑے بڑے راجا دیکھے, لیکن میں نے پیغمبر محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اتنی عزت, اتنی ریسپیکٹ, اتنی محبت, اتنا احترام, اپنے لیے من مٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, میں اپنی بات نہیں
कह रहा कि गैर मुस्लिम एक काफिर की बात सुना रहा हूं जिसने अपनी आंखों से पैगंबर मोहम्मद को देखा था। ऐ स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती और ऐ पुष्पेंद्र महाराज और ऐ मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, ऐ मेरी गैर मुस्लिम बहनों, आपने पैगंबर मोहम्मद को नहीं देखा, हमने पैगंबर मोहम्मद को नहीं देखा, लेकिन हम पैगंबर मोहम्मद को बिन देखे ईमान लाते हैं। आप पैगंबर मोहम्मद को नहीं देखे, आप ईमान नहीं लाए हैं, हम आपको ईमान की दावत तो देंगे, लेकिन हम आपको ये इजाजत नहीं दे सकते कि आप पैगंबर मोहम्मद को बुरा भला कहो, पैगंबर मोहम्मद को नौजुबिल्लाह उनकी हट करो, उनकी बदतमीजी करो, इसकी इजाजत नहीं दे सकते। उस जमाने के गैर मुस्लिम ने आंखों से देखकर बताया है। वो कहते हैं मैंने देखा कि पैगंबर मोहम्मद के सामने उनके शागिर्द निगाहें नीची करके ठहरते हैं, नजर ऊपर नहीं उठाते, अपने नबी की आंख से आंख नहीं मिलाते। मैंने देखा, ऐसे बादशाहों को नहीं देखा, राजाओं को नहीं देखा। इतनी इज्जत जो पैगंबर मोहम्मद को मिली है वो अपनी आंखें नीची करते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद नीचे देखते हैं, जब पैगंबर मोहम्मद दाएं देखते हैं, जब पैगंबर मोहम्मद बाएं देखते हैं, तो सहाबा अपनी आंखों को उठाकर पैगंबर मोहम्मद के चेहरे को देखते हैं, उनके चेहरे को देखकर अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उनके चेहरे के नूर को देखकर अपनी आंखों को सुरूर पहुंचा लेते हैं। फिर जब पैगंबर मोहम्मद सहाबा को देखते हैं अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं। ये गैर मुस्लिम काफिर का एनालिसिस है पैगंबर मोहम्मद के बारे में। अब समझ में आया आपको? पुष्पेंद्र महाराज, स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, मेरी गैर मुस्लिम बहनों, मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों, अब समझ में आया आपको पैगंबर मोहम्मद के लिए क्यों इतना आज मुसलमान मारा जाता है, क्यों इतना सेंसिटिव है, क्यों इतना ज्यादा जज्बाती बन जाता है? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ऐसी शख्सियत है जिसमें कोई ऐब है ही नहीं, जिसमें कोई ऐब था ही नहीं, जिसमें कोई ऐब होगा नहीं, जिसमें कोई ऐब मेरे रब ने बनाया नहीं। फिर आप उस पैगंबर मोहम्मद की शान में ऐबों के ऐब बताओगे तो भला क्यों खामोश बैठा जा सकता? मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से हमारी फीलिंग है, हमारे जज्बात है, हमारा दिल का दुख है, हमारे दिल की तड़प है, अगर ऐ पुष्पेंद्र महाराज और अगर ऐ स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, अगर आप हमारी जगह होते, अगर आप भी मुसलमान होते, अगर आप भी अल्लाह के नबी के सच्चे गुलाम होते, अगर आप आका के कमली वाले मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाते, अगर आप इस कुरान मजीद के सच्चे फॉलोवर होते, जो कुरान मेरे हाथ में मौजूद है, अगर आप इस कुरान को मानने वाले होते, अगर आप पैगंबर मोहम्मद के फॉलोवर होते, तो हमारे दिल के जो जज्बात है, हमारा जो गम है, हमसे ज्यादा तो आपको गुस्सा आता। बल क्यों? इसलिए कि आज आपके गुस्से को देखकर, हम आपकी नाफरमानियों को देखकर, आपकी गुस्ताखियों को देखकर हम तो अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को सोचकर, नबी की तालीमात को सोचकर आपको गुस्सा और आ जाता। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हमें हमारे नबी ने दर्स दिया है। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। पुष्पेंद्र महाराज और स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती बार बार कहते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। आज जो वीडियो शुरू में लगी हुई है, मैं मेरे मुसलमान दोस्तों से कहता हूं, ये जो वीडियो लगी हुई है, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि पुष्पेंद्र महाराज की फोटो दिखाने में कोई बरकत वाली फोटो है, देखने से आंखों को ठंडक मिलेगी, कोई स्वामी की फोटो ऐसी है कि उसकी फोटो देखने से हमारे आंखों को ठंडक मिलेगी, ये बात नहीं है। इसलिए दिखाई जा रही है, पता चले, कौम को पता चले, मुल्क को पता चले, इंसानियत को पता चले, जमाने को पता चले कि ये रुसवाए जमाना लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं। हम उसका सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि अपने रिश्तेदारों का कत्लेआम कर दिया मोहम्मद पैगंबर ने, नऊज़ बिल्लाह। मैं आपको ये कुरान पढ़कर बता रहा हूं। ये मोहम्मद पैगंबर के सगे चचा अबू लहब, सगी चची अबू लहब की बीवी, ये दोनों के दोनों गुस्ताख थे, ये दोनों के दोनों गद्दार थे, ये दोनों के दोनों बागी थे। लेकिन मोहम्मद पैगंबर ने इनको नहीं मारा। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, तुम अपने झूठ से तौबा कर लो, तुम अपने इल्जाम से तौबा कर लो, वरना देखो यहां पर क्या हुआ था। कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, फरमाया अबू लहब के हाथ बर्बाद हो जाएं। अरबी मुहावरे में हाथों की बर्बादी का मतलब इंसान की बर्बादी ही होती है।
अगर तुमने आज तौबा नहीं की, अगर तुमने आज अपने मुंह को खामोश नहीं रखा, अगर तुमने आज अपने आप को शर्मिंदा नहीं कर दिया, तो हम भी ये कहेंगे जैसे कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहबी व तब, कि अबू लहब के हाथ खाक आलूद हो जाए, अबू लहब तबाह हो जाए, तो हम भी कुरान मजीद की इस आयत को सामने रखकर पूरे यकीन से ये कह सकते हैं स्वामी नरसिंह आनंद सरस्वती तबाह हो जाएगा, पुष्पेंद्र महाराज तबाह हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो अगर इस्लामी कानून होता यकीनन ये सजा होती कि जिसने गुस्ताखी रसूल की हो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन ये डेमोक्रेसी है। हम इस मुल्क में हुकूमत से सवाल करते हैं, हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं, हुकूमत से हम क्वेश्चन करते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको कानूनी दायरे में लो, इनको सजा दो, इनको पनिशमेंट दो, एक लॉ बना दो। किसी भी मजहबी शख्सियत को बुरा कहना कानूनन जुर्म है। हम ना तो इस्लामी शरीयत के कानून को नाफिज करने की बात करेंगे, क्योंकि इस्लामी ला होता जरूर मार दिए जाते, लेकिन आज भी कोई जिगर वाला होगा तो हम तो उसको नहीं रोक सकते। मुसलमानों के जज्बात है, हम ये कहेंगे कानून में रहकर कार्रवाई करो, कानून में रहकर कार्रवाई करो, बदला लो, कानून में रहकर केस करो और सख्त से सख्त सजा दिलाओ। ये पनिशमेंट के काबिल है, इनको पनिशमेंट दिलाओ। एक तीसरी शक्ल में बताता हूं, गुस्ताखी रसूल की ये तीसरी सजा जो कुरान मजीद बता रहा है। अबू लहब जैसे बर्बाद हो गया वैसे बर्बाद हो जाओगे तुम भी, स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, तुम भी तबाह हो जाओगे। जैसे अबू लहब तबाह हो गया, जैसे अबू लहब की बीवी तबाह हो गई, तुम भी तबाह हो जाओगे। ऐ पुष्पेंद्र महाराज, तुम भी तबाह हो जाओगे जैसे तबाह हो गया था अबू लहब। हालांकि वो चचा था मोहम्मद पैगंबर का, चचा होकर भी वो तबाह हो गया। तुम तो चचा भी नहीं, तुम तो दुश्मन हो, तुम तो बागी हो, तुम तो गद्दार हो, तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो गुस्ताख हो, तुम्हारी जबान तो गंदगी बकती है, तुम तो किसी के फेंके हुए टुकड़ों में पलने वाले हो, तुमने तो झूठ का पलंदा पूरी कौम में फैला दिया है। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि मोहम्मद पैगंबर अपने खानदान वालों को, अपने परिवार वालों को कत्ले आम करते थे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं दलील बता रहा हूँ कि अबू लहब को अल्लाह के नबी ने नहीं मारा, बल्कि बदर के 7 दिन बाद, यानी ग़ज़वे बदर जो 17 रमज़ान को पेश आया, ग़ज़वे बदर के 7 दिन के बाद ताउन जैसी बीमारी हुई। अरब के लोग छूट छात के कायल थे, जिसे आदसा की बीमारी होती थी उसे हाथ भी नहीं लगाते थे। चुनाचे वो इसी हालत में मर गया और अबू लहब की लाश में सख्त बदबू पैदा हो गई। यहाँ तक के लोगों ने किसी लकड़ी के सहारे उसे एक गड़े में दफन कर दिया। सोचो आप, लिखा है किताबों में कि बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं, बीवी अपने शौहर की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं। ये अंजाम हुआ था अबू लहब का। ये अबू लहब गुस्ताख रसूल था, और ऐ गुस्ताख रसूलों, तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रसूल का जो गुस्ताख होगा उसका यही अंजाम होगा, उसकी यही सजा होगी। वो दूसरी बात है, तुम कहते हो कि मुसलमानों को किसी के मारने का इतना पावर कहां से मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो पावर का मसला आप बाजू में रखो, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और दूसरी बात, हुकूमत भी पुष्पनाही कर रही, हुकूमत कोई चाराजोई नहीं कर रही, हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हुकूमत छोड़ी हुई है, जो बोलना है बोलो। ठीक है, चलो ये बात भी नहीं होगी, लेकिन एक ऑप्शन मैंने आज बता दिया है कुरान मजीद की रोशनी में। अगर गुस्ताख रसूल को अल्लाह तबारक व तआला पकड़ने आएगा तो ऐसा बुरा पकड़ेगा कि बीवी बच्चे हाथ नहीं लगाएंगे। पुष्पेंद्र महाराज और स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी को बड़ा नाज है, वो बड़े प्राउड में हैं कि मेरे बच्चे बार बार कहते रहते हैं मेरे बच्चे मैं मरूंगा, मेरे बाद तुम ये काम करोगे, मेरे बच्चे मैं मरूंगा, मेरे बाद ये काम होगा, मेरे बच्चे मुसलमान ऐसा होगा, मेरे बच्चे मुसलमान वैसा होगा। मैं कहना चाहता हूं आपको तो मैं मेरे बच्चे कह नहीं सकता, क्योंकि आप तो उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, लेकिन ये जो आपके बच्चे हैं, आप जो हर रिपोर्टर को बच्चा कहते हैं, आप जो हर बच्चे को अपना बच्चा बना लेते हैं, मैं कहना चाहता हूं ये कोई बच्चा आपकी लाश को हाथ लगाने नहीं आएगा। ये आप भूल जाओ कि मुसलमान मुझे मार डालेंगे। अरे मुसलमानों से पहले मुसलमानों का अल्लाह है, जो तुम्हारा भी अल्लाह है, पूरी कायनात का अल्लाह है, जर्रे जर्रे का अल्लाह है, चप्पे चप्पे का अल्लाह है। रूए जमीन पर छोटी से छोटी मखलूक से लेकर
बड़ी से बड़ी मखलूक, आसमान के बनाने वाला वही अल्लाह, ज़मीन का बिछाने वाला वही अल्लाह, फर्श का बिछाने वाला वही अल्लाह, पहाड़ों को लगाने वाला वही अल्लाह, दरियाओं को चलाने वाला वही अल्लाह, आबशारों को गिराने वाला वही अल्लाह, उड़ने वाली मखलूक मेरे अल्लाह की पाबंद, ज़मीन पर रेंगने वाली मखलूक मेरे अल्लाह की पाबंद, समंदर की तहों में जीने वाली मखलूक मेरे अल्लाह की पाबंद, हवाओं में रहने वाली मखलूक मेरे अल्लाह की पाबंद, पहाड़ों में खाने वाली मखलूक मेरे अल्लाह की पाबंद। मेरा रब है जो पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को जिंदगी बख्श रहा है, वही तुम्हारा भी रब है, मेरा भी रब है। उस अल्लाह की पकड़ से डरो, उस अल्लाह के कहर से डरो, उस अल्लाह के अजाब से डरो। अबू लहब, अल्लाह ने अबू लहब को नबी का चचा समझकर नहीं छोड़ा कि मेरे नबी का, मेरे महबूब का, मेरे लाडले रसूल का, मेरे प्यारे रसूल का, जो रसूल मेरे लिए दीन फैलाने के लिए उम्मत के दर्द में रोता रहता है, जिस नबी पर मैं ये कुरान उतार रहा हूँ, ये कलाम उतार रहा हूँ, ये अल्लाह का फरमान उतार रहा हूँ, ये प्यारा कलाम जिस नबी के सीने में उतारा गया है, उसका चचा है। चलो नबी के चचा को छोड़ डालूंगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्लाह को अपने महबूब से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बहुत चाहते हैं अपने नबी को, बहुत प्यार करते हैं अपने नबी को। नबी बैठ गए किसी काम से, नबी थक गए किसी काम से, नबी परेशान है किसी वजह से, अल्लाह तसल्ली देता है, ए मेरे नबी आप क्यों इतना गम करते हो, परेशान मत हो, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, परेशान मत हो। नबी के दिल जोई जो अल्लाह कर रहा है, नबी को अगर कोई नबी की गुस्ताखी करेगा तो क्या अल्लाह बदला नहीं लेगा? ज़रूर बदला लेगा। बहुत सारे मेरे गैर मुस्लिम भाई अब देख रहे होंगे और यकीनन मेरी इन बातों से उनको गुस्सा भी आ रहा होगा, गालियां भी दे रहे होंगे। दे लो मेरे भाई गाली, एक नहीं 100 गाली दे दो, 1000 गाली दे दो, लेकिन याद रखो अगर इस दुनिया को चलाने वाला कोई है और यकीनन वो अल्लाह है, इस दुनिया को चलाने वाला एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस कुरान मजीद में ये जो कलाम पाक में लेकर बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी मेरे सामने कलाम पाक है, यहाँ भी मेरे सामने कलाम पाक है। मैं कुरान इसलिए लेकर बैठता हूं ताकि आप ये कुरान देख सके। इस कलाम पाक को देखो, इन दोनों कुरानों को मेरे हाथ में है। ये कुरान वो है जो सिर्फ कुरान लिखी है अरबी में, इसमें तर्जमा नहीं है। ये कुरान वो है जिसमें कुरान में अरबी भी है, तर्जमा भी है। इस कुरान में लिखा हुआ है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया में, इस जहान में 2 इलाह होते, 2 गॉड होते, 2 ईश्वर होते, तो ये जमीन तबाह हो जाती, ये आसमान चुकना चूर हो जाता, ये कायनात बर्बाद हो जाती, ये दुनिया खत्म हो जाती। इस दुनिया के बाकी रहने की दलील ये है कि इस कायनात का एक अल्लाह है, एक रब है, एक पालनहार है। अगर आप उस एक पालनहार को मानते हो, अगर आप खुदा को मानते हो, अगर आप इस बात के कायल हो कोई किसी ने मुझे बनाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप या तो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को कह दो कि तौबा कर लो, खामोश बैठ जाओ, बोलना छोड़ दो। आप अपने मजहब को प्रमोट करो, कोई नहीं रोकता। सनातन धर्म को प्रमोट करिए, कोई नहीं रोकेगा। आप अपने मजहब के प्रचारक बनिए, कोई नहीं रोकेगा। आपको हक है, आपको इख्तियार है, आप अपने मजहब में 24 घंटे मेहनत कीजिए, कोई नहीं रोकता। आप कोशिश कीजिए, पूरी दुनिया को आप सनातन धर्म बनाना चाहते हो, आप ऐसी कोशिश कीजिए, आपको हक है। लेकिन इसके लिए आप इस्लाम को बुरा कहेंगे, इस्लाम को गाली देकर, इस्लाम को बुरा कहकर, मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके, कुरान की शान में गुस्ताखी करके आप झूठी पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। यकीनन खुद महाराज कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कोई मेरा गैर मुस्लिम भाई गालियां मत दे दो, फिर ना कह दो कि झूठ बोलेंगे और झूठ बोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन सजा देगा और उसकी सजा आकर रहेगी। मैं सुना रहा हूं, मैं बता रहा हूं, हम नहीं चाहते कोई तबाह हो जाए, हम नहीं चाहते किसी को सजा मिले। हम तो ये चाहते हैं कि स्वामी जी भी जिंदा रहे, वो भी पैगंबर मोहम्मद की अजमतों को देखे, वो भी इनकी इज्जतों को देखे। और जरूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला आज हो तो आज ही अजाब दे दे, अल्लाह ढील देते हैं, अल्लाह मौका देते हैं। अबू लहब को कब दिया था? अबू लहब मक्के में सताना शुरू किया, 13 साल मक्के के, बदर के 2 साल, 15 साल अल्लाह ने मोहलत दी थी। फिरौन को अल्लाह ने 400 साल मोहलत दी थी। अल्लाह मोहलत देते हैं। नमरूद को अल्लाह ने एक जमाने तक मोहलत दी थी, कारून को अल्लाह ने एक जमाने तक मोहलत दी थी। अल्लाह मोहलत देते हैं, आज भी मोहलत मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आज बोलेंगे तो आज हो जाएगा, या आज गुस्ताखी करेंगे तो आज हो जाएगा, वो भी अल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह मौका देते हैं। बार बार
स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती खुद अपनी वीडियोस में ये कहते रहते हैं और ये बार बार ये बोलते रहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने सनातन धर्म को प्रमोट करना चाहते हो करो, लेकिन इस्लाम को बुरा मत कहो, कुरान को बुरा मत कहो। खुद स्वामी जी ने कहा, मैं नहीं कहता, मैं कहूंगा शायद मेरे गैर मुस्लिम भाई रूठ जाएंगे, फिलहाल वो मुझसे बड़े गुस्से में है। मेरी तो ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से मुलाकात कर सकूं, मैं उन भाइयों को अपनी मस्जिद में बुलाऊं, मैं अपने उन भाइयों को अपने मदरसे में बुलाऊं, मैं अपनी मस्जिद दिखाऊं, मैं अपने इलाके की मस्जिद बताऊं, मैं अपने मदरसा बताऊं, देखो मेरे भाई मस्जिद में क्या होता है, मदरसे में क्या होता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कुरान कैसे पढ़ी जाती है, दीन कैसे सीखते हैं। जो झूठे बातें आपके कानों में सुनाई जा रही है, आप उसी को सच्चा समझ रहे हैं। स्वामी जी ने बार बार कहा कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं छोटा सा आदमी हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूं, मैं गल्फ में, मैं बाहर के मुल्कों में रहकर पढ़कर आया हूं, मेरा पूरे फैमिली वहां रहती है, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी अभी मैं इन चीज़ों में लगा हूं, कुछ सालों से एक वाक़या आया, ये वो सुनाते हैं, लेकिन वो सुनाते सुनाते ये भी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरा मकसद तो बस ऐसा ऐसा करना है। मैं यही पूछना चाहता हूं, कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले हाल ये था कि कोई नहीं पहचानता था, लेकिन अब पूरी दुनिया जान रही है। क्यों भाई? क्योंकि पॉपुलर सेलिब्रिटी को, यानी पॉपुलर पर्सनालिटी को, पॉपुलर बुक को, पॉपुलर रिलीजियन को, पॉपुलर मजहब को आपने अपने से जोड़ लिया। कैसे जोड़ा? एक शक्ल ये थी कि आप खुद उस पॉपुलर रिलीजियन से जुड़ जाते, आप मुसलमान बन जाते, आप मुसलमान बन जाते। आप ये जो पॉपुलर बुक है पूरी दुनिया की, ये कुरान मजीद, इस कुरान मजीद को आप पढ़ लेते, कुरान मजीद से आप अपना रिश्ता जोड़ लेते। और पॉपुलर सेलिब्रिटी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप उन्हें अपना नबी मान लेते। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने क्या किया? आपने एक गलत चाल चली, आपने एक नया हरवा इख्तियार कर दिया। ये जो पॉपुलर इस्लाम मजहब है, रिलीजन है, इसको बुरा भला कहना शुरू कर दो, आप ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो रहे हैं, लोग जान रहे, लोग देख रहे हैं। लेकिन इस जानने और देखने से सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, अल्लाह के लिए अपने आप को इस काम के लिए आमदा मत करो, नबी की शान में गुस्ताखी मत करो, नबी की शान में बुरा भला मत कहो, इस्लाम की बुराई मत करो, कुरान की बुराई मत करो। आपको इख्तियार है अपने मजहब को प्रमोट करने का। तो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने दूसरा इल्जाम नबी की शान में यह लगाया कि अल्लाह के नबी कत्लेआम किए हैं अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का। हालांकि यह कितना बड़ा झूठ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब नहीं माना, और भी बहुत से कुरैश के लोग नहीं माने, लेकिन नबी ने किसी को नहीं मारा। यह झूठ है, यह सरासर झूठ है। और वो कहता है कि रिलीजियन ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम में यह है कि अपने परिवार के लोगों को मारो। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज भी मैं पूरे दलील के साथ कहना चाहता हूं, आज भी मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में, हमारे मुल्क भारत में कई ऐसे गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, कई ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं कि वो कन्वर्ट हो गए, वो मजहब इस्लाम में आ गए, उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सनातन धर्म के थे हो, किसी भी धर्म के होंगे, हमें किसी से बेर नहीं, हम सबका आदर्श करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये झूठ जो मेरे गैर मुस्लिम भाइयों के कानों में डाला जा रहा, और ये जो लोरी सुनाई जा रही झूठी, उसी को मान रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, वो तो मुसलमान हो गए, उनकी अम्मी अभी मुसलमान नहीं हुई, उनके अब्बा मुसलमान नहीं हुए, उनकी सिस्टर्स मुसलमान नहीं हुई, लेकिन ये गैर मुस्लिम भाई क्या उनसे लड़ रहे हैं? क्या उनको मार रहे हैं? क्या उनको तकलीफ दे रहे हैं? क्या उनसे झगड़ा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए ना, आप जमीनी हकाइक पर बात कीजिए। आप झूठ बोलते जा रहे हैं मीडिया के सामने खड़े होकर, नहीं चलेगा। आप जमीनी हकाइक देखिए। कितनी ऐसी हमारी गैर मुस्लिम बहनें थी जो मुसलमान बन गई, उनके अब्बा, उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स गैर मुस्लिम हैं, लेकिन नहीं लड़ते, नहीं मारते, झगड़ा नहीं करते, कहीं नहीं करते, पूरी दुनिया में कहीं नहीं करते। ये झूठ है जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये दूसरा इल्ज़ाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने किया, उस बदबख्त ने किया था। अब आइए तीसरी तरफ आते हैं। उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो मैं कुरान बार बार दिखाता हूँ, इसीलिए दिखाता हूँ, ये कुरान देखना भी हमारे लिए बाइस सवाब है, आँखों की ठंडक का सामान है, दिल के सुकून का सामान है। कुरान को देखना भी हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई स्वामी
नरसिंह आनंद सरस्वती महाराज की बातों में आकर ये कहते हैं नौज़ बिल्लाह लाख मरतबा कि ये कुरान गुंडों की किताब है, ये कुरान कौन पढ़ेगा, ये हम क्यों पढ़ेंगे। मेरे भाई, हम अगर आपकी जो गीता है, आपकी जो धार्मिक किताब है, आपकी जो रिलीजन बिलीफ आप इस पर करते हैं, आपकी उससे आस्था जुड़ी हुई है, अगर कोई उस किताब को कहेगा, आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि पहले आप गीता पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। गीता में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपको हक बनता है कहने का। अगर कोई बोल रहा है वो भी गलत कर रहा है, आपको हक बनता है तो हमें भी हक बनता है। आपको हक मिलेगा तो हमको नहीं मिलेगा। हम बस ये कह रहे हैं स्वामी ने झूठ कहा, आप सच पढ़िए, कुरान एक मरतबा खोल कर पढ़ लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि गुंडे कौन है। मुसलमान तो नहीं है, दुनिया में कोई और है जो बहका रहा है, जो फुसला रहा है। एक तीसरा, एक खतरनाक इल्ज़ाम और एतराज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जो किया गया है वो ये था कि मोहम्मद पैगम्बर लाख मरतबा नऊज़ बिल्लाह महिला के साथ बुरा सलूक करते थे, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ गलत हरकत करते थे नऊज़ बिल्लाह। और कहता है कि तमाम मुसलमानों के लिए ये काम ज़रूरी है, ये धार्मिक कर्तव्य है, ये रिलीजन ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम है। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, इतना खतरनाक इल्जाम लगाया मैंने कल के सेशन में और परसों के सेशन में मैंने बता दिया है। मैंने कल के सेशन में यह बात बताई थी कि औरतों पर 7 कौम के लोग ऐसे थे जो जुल्म करते थे, इस्लाम ने उनके ऊपर एहसान कर दिया। परसों के सेशन में भी मैंने बताया था, 2 पार्ट हमने उसके बनाए थे, कल और परसों। जो गैर मुस्लिम भाई वो नहीं देखे, एक मरतबा देख लो, जो मुसलमान नहीं देखे वो भी देख लो, क्योंकि हम इसका जवाब कल दे चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये सरासर झूठ है। मोहम्मद पैगंबर जो एहतराम औरत का करते थे, जो रिस्पेक्ट औरत की करते थे, जो इज्जत औरत की करते थे, जो मकाम औरत को दिया था, जो मर्तबा औरत को दिया था, जो हैसियत औरत को दी थी, वो दुनिया में किसी ने नहीं दी। ये मुसलमानों की रिलीजन ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम नहीं है, ये मुसलमानों की ड्यूटी नहीं है। मुसलमानों की ड्यूटी क्या है, इंशाअल्लाह ताला हम कल बताएंगे। हम कल बताकर उसका तफसीली जवाब हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि तीसरा जो एतराज़ है वो बड़ा घिनौना एतराज़ है। उस एतराज़ को सुनाने को दिल नहीं चाहता जिस नबी ने औरतों को इज्जत दी, औरतों को एहतराम दिया, औरतों को मकाम दिया, औरतों को रिस्पेक्ट दी, औरतों को लोगों के दिलों में औरतों की इज्जत पैदा की। और जो जुल्म होता था औरत के ऊपर, कि रोमन कौम में, यूनानी कौम में जो जुल्म होता था, यहूदियों में, ईसाइयों में जो जुल्म होता था, मुख्तलिफ किस्म के तबकात में, अल्लाह के रसूल ने उस जुल्म को खत्म कर दिया। और आज उसी पैगंबर की शान में इस तरह की बुरी बातें कही जा रही। सुन लो स्वामी नरसिंह आनंद सरस्वती जी और सुन लो पुष्पेंद्र महाराज, ये आपकी गुस्ताखियां अब नहीं चलेगी। जैसे आप लोग कह रहे हो कि जागो जागो, हम भी जाग रहे हैं, लेकिन हम लड़ने के लिए नहीं जागेंगे। हम बताएंगे दुनिया को, हम बताएंगे दुनिया को कि सच क्या है, हम बताएंगे दुनिया को कि झूठ क्या है, हम बताएंगे कि दुनिया को गलत क्या है। मदरसों और मस्जिदों के बारे में एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है कि मस्जिदों में मुसलमानों को वायलेंस चीटिंग कराई जाती है और मदरसों में भी इस्लाम के यानी लोगों को टेररिस्ट बनाया जाता है। नऊज़ बिल्लाह, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप मस्जिद को आएंगे नहीं, मदरसे को आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आपके सामने क्लियर नहीं होगा। मैं भी मदरसे में पढ़ा हुआ हूं, 15 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ा है। आज तक एक हर्फ भी हमने ऐसा नहीं देखा, एक लम्हे के लिए भी हमने ऐसा सीन नहीं देखा। सब झूठ कहते हैं आप लोग। आज हमारे मुल्क में कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में गैर मुस्लिम भाई और मुसलमान भाई दोनों आपस में मस्जिद में मिल रहे हैं, मस्जिद में मुलाकात हो रही है। हमारे हिंदू भाई मस्जिद में आ रहे हैं और मस्जिदों में आकर वो हमारे मुसलमानों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, वो अजान सुन रहे हैं, वो नमाज देख रहे हैं, उन्हें सब दिखाया जा रहा, समझाया जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे गैर मुस्लिम भाई के वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, सब इल्ज़ाम लगाया जाता है, सब झूठ बात है। बस आज का हमारा सेशन यही मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह ताला रिलीजन ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम जो
ایک عنوان ہے, ایک ٹاپک ہے کہ مسلمان کیا مسلمان, یہ 3 کام کرتا ہے. انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں قرآن مجید سے, میں قرآن لے کر بیٹھا ہوا الحمدللہ, یہ قرآن مجید سے میں پروف کر کے بتاؤں گا کہ پہلی بات کہی گئی کہ مسلمان بھی غیر مسلموں کے دھارمک آستھا مقامات کو توڑ دیتا ہے, اور دوسری بات یہ کہی توڑنا ثواب ہے, اور دوسری بات یہ کہی کہ قتل عام کرنا جو ایمان نہیں لائے یہ بھی ثواب ہے, اور تیسری بات یہ ہے مہیلاؤں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ ان کے پاس ثواب کا کام ہے. تو میں قرآن سے یہ بتاؤں گا کہ ثواب کا کام کیا ہے, ریلیجیس ڈیوٹی آف اے مسلم کیا ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ اس کو دھارمک کتاب کہتے ہیں, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. یہ مذہبی کتاب ہے, ہاں مذہبی کتاب ہے. یہ قرآن ہے, ہاں قرآن ہے. یہ مسلمانوں کے لیے قانون زندگی ہے, ہاں. تو ہم اس سے بتائیں گے آپ کو. ہمارے زندگی کے بارے میں بتانے کے لیے سوامی جی کو تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہم سے پوچھئے, ہم بتائیں گے, ہم سنائیں گے کہ حقیقت میں کیا سچائی ہے, ریلیجن ڈیوٹی آف اے مسلم کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے زندگی باقی رکھی تو کل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آخر میں پھر سے وہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب مختصر سی دعا ہوگی, اور دعا کے بعد یہ نشست ختم ہو جائے گی. اس پیغام کو غیر مسلموں تک پھیلانے کی ہم کو ضرورت ہے. آج مسلمانوں سے امتحان ہے کہ آپ کے نبی کی سنت پر حملہ کیا جا رہا, آپ کے نبی کی ذات پر حملہ کیا جا رہا, آپ کے نبی کے قرآن پر حملہ کیا جا رہا, آپ کے نبی کے اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی. آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کرنے کو آپ تیار ہے؟ کیا آپ آج بھی قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کو تیار نہیں؟ کیا آپ آج بھی اسلام کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کو تیار نہیں؟ کیا آج آپ بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں؟ کیا آج بھی آپ نبی کی زندگی پڑھنے کو تیار نہیں؟ میرے سامنے یہ بخاری رکھی ہوئی ہے, یہ بخاری شریف دیکھیے. اس کتاب کو, اس بخاری شریف کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لکھی ہوئی ہے, زندگی کا سچ لکھا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ کتاب ایسی ہے؟ آپ نے کبھی پڑھا اس کتاب کو؟ اے مسلمان بھائیوں, اے مسلمان بہنوں, کھڑے ہو جاؤ اور اپنے جذبات کو بلند کرو, ارادوں کو مضبوط کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنا تعلق جوڑ لو, اپنی زندگی کو جوڑ لو. انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لے دعا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اے رحیم اور کریم اللہ, رحم کا, کرم کا, عافیت کا, عفو کا, درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. پوری امت کے حالات پہ رحم فرما دیجئے, پوری امت کے حالات پہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ خطاؤں کو, گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے پیارے اللہ, اے رحیم اللہ, رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے میرے مالک, دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اے اللہ رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے میرے مولا, مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے میرے مالک. اے اللہ ہمیں رحمت کے عشرے سے رحمت دے دیجئے, مغفرت کے عشرے سے مغفرت کی سوغات دے دیجئے. اے اللہ آنے والا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اے اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی دے دیجئے. اے رحیم اور کریم اللہ, اے پیارے اللہ, اے ستار, اے غفار, اے مالک الملک, اے ذوالجلال والاکرام. اے پیارے اللہ, رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, لیکن اس مبارک مہینے میں آپ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی, اسلام کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی. اے اللہ اسلام جیسے عظیم مذہب کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا. اے پیارے اللہ, اے اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اے اللہ ان حالات سے مسلمانوں کو نکال دیجئے. اے پیارے اللہ, جو غیر مسلم بھائی غلط سمجھ چکے ہیں, جن کو غلط سمجھا دیا گیا ہے, اے اللہ جو نہیں جانتے اسلام کیا ہے, جو نہیں جانتے قرآن کیا ہے, اے اللہ قرآن کو گنڈوں کی کتاب کہا جا رہا. اے اللہ مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے والی قوم کہا جا رہا. اے اللہ مسلمانوں کو لڑنے والی قوم کہا جا رہا. اے پیارے اللہ, ان مسلمانوں کا قصور کیا ہے میرے مالک؟ یہی نہ کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بیوی کو, بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا تھا. اے اللہ ان مسلمانوں کا قصور یہی تھا نا میرے مولا کہ انہوں نے قرآن کی حفاظت میں اپنی زندگیاں قربان کر دی. پیغمبر محمد کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تو اپنے آپ کو جان پر کھیلنے کو تیار ہو جاتے. اے اللہ کیا یہی غلطی تھی مسلمانوں کی؟ نہیں نا میرے مولا, یہ تو انہوں نے آپ کے محبوب کی محبت میں کیا, آپ پر ایمان کی وجہ سے کیا.
आज भी पूरी दुनिया में मुसलमानों को सताया जा रहा। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां मुसलमानों के हुकूक नहीं लूटे जा रहे, मुसलमान बच्चियों को मारा जा रहा, मुसलमान बच्चों को मारा जा रहा। ऐ अल्लाह, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, लेकिन ये हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान जालिम बने हुए हैं। ऐ प्यारे अल्लाह, ये कैसा जुल्म है मेरे मालिक कि जिस पर जुल्म किया जा रहा, मजलूम को जालिम कह रहे हैं मेरे मालिक। और कितना जुल्म मुसलमानों पर टूटेगा, और कब तक मुसलमान इन जुल्मों को बर्दाश्त करेंगे। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ रहीम अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं रही मेरे मालिक, हम आका की शान में गुस्ताखियों को सुनकर नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐ अल्लाह, हमें इस जुल्म से नजात दे दीजिए। ऐ अल्लाह, हम ये कहते हैं कि जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐ प्यारे अल्लाह, आप उन्हें हिदायत दे दीजिए, हिदायत दे दीजिए मेरे मालिक, हिदायत दे दीजिए मेरे अल्लाह, हिदायत दे दीजिए। ऐ प्यारे अल्लाह, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। पूरी उम्मत के हालात में रहम फरमा दीजिए, पूरी उम्मत के हालात में करम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, रात का अंधेरा हो चुका है मेरे मालिक, ये वो वक्त है कि आप अपने बंदों की सुनते हैं, बंदियों की सुनते हैं। ऐ प्यारे अल्लाह, हमारी भी सुन लीजिए अल्लाह, हमारी भी सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए मेरे मालिक, हमारी भी सुन लीजिए। हम भी आपके बंदे हैं, हम भी आपकी बंदियां हैं। ऐ अल्लाह, आधी रात का वक्त हो चुका है, एक लंबे वक्त से हम आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में, आपके महबूब के दीन की बात सुन रहे हैं। शान मुस्तफ़ा बयान कर रहे थे, शान कुरान बयान कर रहे थे, शान इस्लाम बयान कर रहे थे। ऐ प्यारे अल्लाह, रहम का, करम का, आफियत का, आफ का मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जितने गैर मुस्लिम भाई हैं उनके दिलों को साफ़ कर दीजिए, उनकी सोच को साफ़ कर दीजिए, उनके दिल में जो हमारे लिए नफ़रत है मेरे मौला, उसे मोहब्बत से बदल दीजिए। अल्लाह जी, हम उनसे नफ़रत नहीं करते, हम उन्हें अपना भाई समझते हैं, हम उनके दिल से प्रेम करते हैं। ऐ अल्लाह, उनके दिल को भी साफ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मौके पर पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। ऐ अल्लाह, कोरोना की वजह से हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, शमशान घाटे भरे हैं, कब्रस्तान भरे हैं, मुसलमान क्या, गैर मुस्लिम क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या। ऐ अल्लाह, रोजाना कई जाने जा रही मेरे मालिक, रोजाना कई वजूद इस दुनिया से खत्म हो रहे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में भी कोहराम मचा हुआ है। ऐ अल्लाह, कोरोना की वबा को पूरे मुल्क से खत्म फरमा, पूरे मुल्क से दूर फरमा। ऐ अल्लाह, इस बीमारी से हमको नजात दे दीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ रहीम अल्लाह, अब तो हमारे पुलिस अफसरान भी गुजारिश कर रहे हैं कि ऐलान कर दीजिए, तरावी के बाद नमाज दुआ कर दीजिए कि कोरोना ख़त्म हो जाए। ऐ अल्लाह, दुनिया को पता है मुसलमान जिसके लिए सजदा करते हैं, मुसलमान जिस रब के सामने सर झुकाते हैं, मुसलमान जिससे मांगते हैं, वो अल्लाह हर किस्म की कुदरत वाला है, हर किस्म की ताकत वाला है। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ रहीम अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, ऐ अल्लाह, कोरोना की वबा से हम सब की हिफाजत कर दीजिए, तेलंगाना की हिफाजत कर दीजिए, तमाम स्टेटों की हिफाजत कर दीजिए। ऐ रहीम और करीम अल्लाह, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ की सांस को उखड़ता हुआ देखकर रो रहे हैं। ऐ प्यारे अल्लाह, कितने बच्चों के सरों से माँ का साया उठ रहा है और कितने बच्चों के सरों से बाप का साया उठ रहा है। ऐ अल्लाह, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, बहुत अनमोल नेमत है। ऐ अल्लाह, माँ बाप के साए को तादर कायम रख दीजिए, माँ बाप के साए को तादर कायम रख दीजिए। ऐ प्यारे अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भाई जितनी बहनें देख रही है, इनके माँ बाप की उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, कोरोना से हम सब की हिफाजत फरमा, पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा, पूरे आलम की हिफाजत फरमा, पूरे शहर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अस्पताल में लोग पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, जान जा रही है। ऐ अल्लाह, सबकी जान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, सबकी जान की हिफाजत फरमा, सबकी जान की हिफाजत फरमा। ऐ रहीम और करीम अल्लाह, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। पूरी उम्मत के हाल पे रहम फरमा दीजिए, पूरी उम्मत के हाल पे करम फरमा दीजिए। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ रहीम और करीम अल्लाह, जितने भाई जितनी बहनें देख रहे हैं, ऐ अल्लाह, इनमें जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, इनमें रिश्तेदारों में कोई बीमार है तो उनको सेहत अता फरमा, इनके घरानों में कोई बीमार है तो उनको सेहत अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, देखने वालों के जो रिश्तेदार इंतकाल कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, उनकी नजात के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, देखने वालों में अगर कोई ऐसे हैं जो बे औलाद हैं, अगर इनके घरानों में, इनके रिश्तेदारों में कोई बेटियां ऐसी है जो बे औलाद है, ऐ अल्लाह, अपने फजल करम से उन्हें साहिब औलाद बना दीजिए, उनकी गोद भर दीजिए मेरे मालिक, उनकी गोद भर दीजिए।
اے اللہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کو گھروں میں تانے دیے جاتے ہیں، ساسوں کے تانے، نندوں کے تانے، زمانے کے تانے کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم نے اب تک ماں نہیں بنی، تمہارے اولاد نہیں ہوئی۔ اے پیارے اللہ وہ بچیاں کیا کر سکتی ہیں میرے مولا؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے میرے مالک؟ کیا وہ اپنی طرف سے ماں بن جاتی؟ اے اللہ ایسی تمام بیٹیوں کو ماں بنا دیجیے، اے اللہ ان کی گودوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ بہت بڑا دکھ ہے امت کا، بہت زیادہ زخمی ہے دل کہ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں امید لگائی ہوئی ہے کہ شاید اللہ اس مہینے میں سن لے گا، رمضان میں سن لے گا۔ اے پیارے اللہ آپ اپنے بندیوں کی سنتے ہیں نا اللہ، آپ اپنے بندوں کی سنتے ہیں نا اللہ۔ اے اللہ آپ ہماری کیوں نہیں سن رہے اللہ، کیوں نہیں سن رہے آپ؟ کیا آپ ناراض ہو گئے اللہ؟ آپ ناراض ہو گئے اللہ جی، آپ ناراض ہو گئے اللہ جی، آپ ناراض ہو گئے اللہ جی، آپ ناراض مت ہوئیے اللہ جی، آپ ناراض مت ہوئیے نا، ناراض مت ہوئیے نا اللہ جی، آپ ناراض مت ہوئیے اللہ جی، آپ ناراض مت ہوئیے اللہ جی، آپ ناراض مت ہوئیے۔ اللہ جی آپ ناراض مت ہوئیے نا اللہ، آپ ناراض ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ زمانے کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، مسلمانوں پر ہونے والا ظلم بتا رہا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ جی آج جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا، ستایا جا رہا، قانونی طور پر شریعت میں مداخلت کی جا رہی۔ اللہ جی آپ ناراض ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ جی آپ ناراض مت ہوئیے نا، آپ ناراض مت ہوئیے اللہ، آپ ناراض مت ہوئیے۔ آپ روٹھ جائیں گے تو زمانہ روٹھ جائے گا، آپ ہم سے روٹھ جائیں گے اللہ تو ہم کیا کریں گے جی کر؟ یہ زندگی کس کام کی جس زندگی میں ہم آپ کو راضی نہیں کر سکے؟ اے پیارے اللہ مان جائیے نا، راضی ہو جائیے نا اللہ، راضی ہو جائیے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے نا اللہ، راضی ہو جائیے نا۔ رات کا اندھیرا ہو چکا، آدھی رات ہو چکی، نوجوان بھائی نوجوان بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ جی کچھ نہیں چاہیے، آپ کی رضا چاہیے، آپ کی رضا چاہیے، آپ کی رضا چاہیے، آپ کے محبوب کی شفاعت چاہیے، آقا کی ایک نظر محبت چاہیے۔ اے اللہ ہم کس منہ سے آقا کو اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ ہم کیسے ناکارے نالائق ہیں اللہ۔ آقا کی شان میں غستاخیاں کی جا رہی اور ہم دنیا کو نبی کا تعارف نہیں کرا سکے میرے مالک، دنیا کو نبی کے بارے میں نہیں سنا سکے، نہیں بتا سکے، کس منہ سے آقا کو اپنا چہرہ دکھائیں گے میرے اللہ؟ اے پیارے اللہ، اے رحیم اللہ آپ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے میرے مولا، راضی ہو جائیے۔ اے پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے رحیم اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم اللہ راضی ہو جائیے، اے ستار اللہ راضی ہو جائیے، اے غفار اللہ راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اے گنہگاروں کو معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ راضی ہو جائیے، اے مجبوروں کی مدد کرنے کا حکم دینے والے اللہ راضی ہو جائیے، اے پریشان حالوں کا خیال کرنے کا آدیش دینے والے اللہ راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ جو گنہگاروں کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے توبہ کے بعد، راضی ہو جائیے میرے مولا، راضی ہو جائیے میرے مولا، راضی ہو جائیے میرے اللہ، راضی ہو جائیے نا اللہ جی، راضی ہو جائیے نا اللہ جی، راضی ہو جائیے نا۔ آپ کی رضا کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں نفرتیں پھیل چکی ہے، آج ہندو مسلم کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا۔ اللہ جی وہ بھی آپ کے بندے، یہ بھی آپ کے بندے، سب آپ کے بندے، سب آپ کی بندیاں، سب کو آپ نے بنایا ہے، سب کے آپ خالق ہیں، سب کے آپ مالک ہیں۔ نہ ہندو کو کسی نے اور نے بنایا، نہ مسلمان کو کسی اور نے بنایا، لیکن اے اللہ یہ نفرت کے بیج کیوں بوئے جا رہے، یہ نفرتیں کیوں پھیلائی جا رہی، یہ زہر کب تک ڈالا جائے گا؟ اللہ جی ہمیں ایک بنا دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو قبول کر لیجئے، ہم سب سے محبت کر لیجئے، ہم سب سے بے پناہ محبت کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے، جب آپ ایک نظر ڈال دیتے ہیں حالات سنور جاتے ہیں۔ آپ کی ایک نظر پڑ گئی تھی
बिशर हाफी पर, तो ऐ अल्लाह वो शराब के नशे में धुत रहने वाले वो शराबी शख्स ऐसे थे, ऐ अल्लाह आपको उन्होंने उनको आपने अपना वली बना लिया मेरे मौला, वली बना लिया मेरे मालिक, वली बना लिया था। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ रहीम अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, आपकी नज़र पड़ गई थी उमर बिन खत्ताब पर, तो आपने उन्हें इस्लाम का दूसरा खलीफा बना डाला, नबी का सच्चा साथी बना डाला। ऐ अल्लाह इनके ज़रिए से दुनिया के लाखों मुरब्बा इस्लाम फैलने का जरिया बना डाला। ऐ अल्लाह आप हम पर भी एक नज़र डाल दीजिए, हम पर भी एक नज़र डाल दीजिए, मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए, प्यार की नज़र डाल दीजिए, हमें अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए मेरे मौला, अपना बना लीजिए। ऐ अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में गैर मुस्लिम भाई भी काफ़ी मकदार में शरीक होते हैं। ऐ अल्लाह हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं मेरे मालिक, उनके दिल में समझा दीजिए मेरे मौला, समझा दीजिए मेरे मालिक, समझा दीजिए मेरे मौला। ऐ अल्लाह उनके दिल में जो नफरत है उसे दूर कर दीजिए, उनके दिल में जो बुग़्ज़ है उसे दूर कर दीजिए, मोहब्बत फैला दीजिए। ऐ अल्लाह इस वक़्त में जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान दोस्त, मुसलमान भाई, जो उलमा, जो दीन के खुद्दाम इस्लाम की हिफाजत में, नबी के तहफ़्फ़ुज़ और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत में, कुरान के दिफा में खड़े हुए हैं, ऐ अल्लाह सब की जान की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा, पूरे आलम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म के समाज को महफूज फरमा, हर किस्म के वायरस से महफूज फरमा, हर किस्म के फितने से महफूज फरमा। ऐ रहीम और करीम अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का, अफ़ का, दरगुजर का मामला फरमा। ऐ अल्लाह आज के हमारे बैठने को, बोलने को, सुनने को, जमा होने को अपने फजल व करम से बेपनाह कबूल फरमा लीजिए। हम सब की दुआओं को महज अपने फजल व करम से अपने महबूब नबी दोनों जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और फ़िल में कबूल व मंजूर फरमा दीजिए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों और साथियों, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो 3 इल्ज़ाम लगाए गए, उन 3 इल्ज़ामों के सिलसिले में आज हमने आज की इस नशिस्त में वजाहत की थी कि ये जो 3 इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं अल्लाह के नबी की शान में, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं। इन इल्ज़ामों की कोई हकीकत नहीं है, ये झूठ है, इनका ताल्लुक़ सच्चाई से नहीं है। इसी के साथ साथ जो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि रिलीजन ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम ये है कि लोगों को मारो, लोगों को काटो, लोगों को जुल्म करो, लड़कियों की इज़्ज़त ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, और रिश्तेदारों ईमान ना लाने वालों को मारो, और ये सब जो बेकार बातें कही गई है। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम ये कुरान मजीद मेरे हाथ में है, कल इस कुरान मजीद की रोशनी में रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम इंशाअल्लाह हम बताएंगे, और हम बताने की कोशिश करेंगे कि कुरान की रोशनी में मुसलमानों की मजहबी जिम्मेदारियां और मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य क्या है। स्वामी जी ने कहा ये कर्तव्य है, हम बताएंगे कि कर्तव्य क्या है, रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मुस्लिम क्या है, हम इंशाअल्लाह इस कुरान से बताएंगे। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त बहुत सारे मुझे लाइव सेशन में शरीक नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी एतराज़ हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी आपको ऐसी बात हो जो आपको गलत लग रही हो इस कुरान के बारे में, मेरे हाथ में कुरान है, मैं कल की बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, तो आप कल या तो कल से कल रात से पहले मैसेज के ज़रिए से मेरे पेज पर, इसी पैगाम दीन फेसबुक के पेज पर आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे अपना सवाल डिस्कस कर सकते हैं। मैं कल लाइव सेशन में इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा। एक गुजारिश तो ये है। दूसरी गुजारिश ये है कि या तो आप लाइव सेशन में ही सवाल कीजिए, कमेंट में ऐसा सवाल कीजिए कि वो सवाल नज़र आए हमको, हम पढ़ सके, इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे। 2 बातें हो गई। अगर आपको इस कुरान पर कोई एतराज़ है, आप ये 2 काम करें, या तो कल रात 10:15 बजे से 10 बजे से पहले अपना एतराज़ मैसेज के ज़रिए से पूछ लिया करें। देखिए, एक आदमी वो होता है कि जिसे कुछ समझना है कि मुसलमानों के बारे में मैंने ये सुना है, कुरान ऐसी किताब है, मैं समझना चाहता हूँ कि ये हकीकत है या गलत है। एक समझना है, एक है कि समझना कुछ नहीं है, जो सुन लिया बस उसी को मान लेना है। तो वैसा आदमी तो एतराज़ करेगा नहीं, सवाल करेगा नहीं, बस ये कहेंगे कि कुरान हम क्यों पढ़े। मैं कहूँगा भाई डर क्यों रहे आप कुरान पढ़ने से? आप डर रहे हैं कुरान पढ़ने से? आप पढ़िए ना कुरान,
آپ پڑھیے, پڑھ کے قرآن مجید کی کسی آیت سے آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو پوچھیے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, ہم سے پوچھیے, انشاءاللہ ہم آپ کے ڈاؤٹ کا جواب دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جواب دیں گے آپ کو. اگر آپ کو جواب ملنے کے باوجود بات سمجھ میں آ جائے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانیں گے, تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, یور چوائس, ہم زبردستی نہیں کریں گے. کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ اس قرآن مجید کے بارے میں بیڈ کمنٹ تو نہیں کریں گے. دو آپشن ہے آپ کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں, میری دو گزارشات ہے, دو ریکویسٹ ہے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کمنٹ پہلے سوال کر لیجئے, انشاءاللہ کل لائیو میں اس کا جواب دے دیا جائے گا. یا تو آپ لائیو سیشن میں سوال کیجئے, آیت نمبر بولیے, سورہ نمبر بولیے, قرآن مجید کھولیے, پڑھیے ایک مرتبہ, تو اس کے بعد انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اگر یہ دونوں کام بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پر کوئی کمنٹ کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا, کیونکہ جب آپ کو قرآن پڑھے ہی نہیں, آپ قرآن دیکھے ہی نہیں, آپ قرآن کھولے ہی نہیں, آپ پھر آپ کس بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں؟ تو میں آج کی اس نشست میں یہ گزارش کر رہا ہوں, میرے سامنے اتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں, میرا یہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, لائیو چل رہا ہے, محفوظ بھی رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میسج میں کوئی قرآن مجید کے بارے میں سوال کریں گے تو میں پتلی گلی سے نکل رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا ہوں. ایسا بھی نہیں ہوگا, انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے, یدھ کرنا نہیں ہے, جنگ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد بس ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر کے ایک دوسرے کے ریلیجن کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اگر کسی کو اسلام پسند آتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے, ہم زبردستی نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی قبول نہیں کر رہا ہے ہم لڑ نہیں رہے ہیں. بس انہی چند گزارشات پر میں آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں, کل کے پروگرام میں ہم انتظار کریں گے. میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے میسیجوں کا انتظار کروں گا کہ قرآن مجید آپ کے سامنے لے کر بیٹھا رہوں گا. اور کل کی سیشن میں آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنا جو اعتراض ہے وہ اعتراض کر کے جواب لے لیجئے گا. کب تک آپ سوامی جی کے باتوں کو یا پھر پشپیندر مہاراج کے باتوں کو یا پھر جو بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے وہ سن کر آپ اندھ بھکتی میں آپ کب تک دھوکہ کھاتے رہیں گے؟ آپ کو واقعتاً اگر کوئی اشکال ہے آپ پڑھیے قرآن, پوچھیے ہم کو. میں آپ کا بھائی حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے, میں آپ کا بھائی تیار ہوں آپ کی خدمت کے لیے. آپ پوچھیے, انشاءاللہ تعالیٰ کل کی لائیو سیشن میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے میرے بھائی, جتنی میری بہنیں اس وقت میں دیکھ رہے ہیں اور جب سے لائیو سیشن شروع ہوا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ سب کی عمروں میں برکت دے, سب کو اللہ صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے, سب کے کاروبار میں اللہ برکت دے, سب کی انکم اللہ مضبوط کر دے, سب کا فائنینشلی اللہ پاک اسٹرانگ کر دے, اور سب کو اللہ پاک نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرمائے, اور سب کی نسلوں کو قیامت تک خدمت کے لیے قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.